کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نہ صرف خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، آپ کے عزیز و اقارب اور بالخصوص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں سے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان بے حد محبت کرتے تھے اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مقام حیرا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں فتح ہوا تو انہوں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حیرا کے مال غنیمت کے ساتھ ایک تیلسان کی چادر اور 1000 درہم بھی بھیجے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیلسان کی قیمتی چادر امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرما دی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسنین کریمین کو حسب موقع عمدہ عطیات عنایت فرمایا کرتے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا خیال بھی کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت حسنین کریمین بھی امیر المؤمنین کی طرف سے ملنے والے عطیات کو قبول فرمایا کرتے تھے، اور یہ ان حضرات کے درمیان باہم بہتر مراسم کے علامات میں سے ہیں۔ یا شہِ کربلا، یا شہِ کربلا، اپنا روزہ دکھا یا شہِ کربلا، اپنا روزہ دکھا یا شہِ کربلا، یا شہِ کربلا، یا شہِ کربلا۔ میں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں ادھر اور مرشد کریم کی زیارت کی ہے، اور ان سے جو سبق ملا ہے کہ نماز کی متعلق، کہ نماز کی پابندی کے متعلق، کہ اکثر لوگ نمازوں میں یعنی کہ رہ جاتے ہیں کہ جب ایک الارم لگایا ہوا ہے تو وہ نہیں بجا تو رہ گئے، تو انہوں نے جو تلقین کی ہے نا کہ یہ الارم ایک کی بجائے 3 لگے ہوں تو ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا تو بج جائے گا، تو نماز کے حوالے سے انہوں پابندی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ کافی یہ اور بھی مزید سبق ملا ان سے مرشد کریم سے۔ الحمدللہ میری شرکت ہوئی ہے ڈسٹرکٹ میرپور خاص سے نا، تو آج ماشاءاللہ نماز کے بارے میں امیر علیہ سنت نے بہت اچھی معلومات دی ہیں کہ نماز ہم عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم سستی کرتے ہیں کہ ابھی پڑھ لیں گے ابھی پڑھ لیں گے، لیکن یہ کہ جو جماعت کا ثواب ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے امیر علیہ سنت نے فرمایا نا کہ بر وقت نماز پڑھیں تاکہ فریش بندہ ہو جائے کہ نماز ہم نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد اپنے دیگر کام کر لیں۔ محمد ارسلان اتاری ٹنڈولا یار سے، میں سیکنڈ مرتبہ فیضان مدینہ آیا ہوں۔ الحمدللہ یہاں پہ دین اچھا سکھایا جاتا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ انشاءاللہ میں یہاں پہ آتا رہوں گا اور دعوت اسلام سے وابستہ رہوں گا۔ 10 افراد کو سلام کریں گے انشاءاللہ، یہ بھی نیت کی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج مدنی مذاکرے کے اندر بیٹھے تو سب سے پہلے تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مسواک کے بارے میں فرمایا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے کہ جو ہے نا مسواک جو ہے نا ضرور کیا کریں گے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی اسلامی بھائی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے گھر پر جا کر اس کے دوستوں، اس کے رشتہ داروں سے ضرور تعزیت کریں۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ یہ ایک علم کا خزانہ ہے۔ مدنی مذاکرے میں تشریف فرما ہو تو میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر وہ بہت سارا علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں سب سے کہوں گا کہ ہر سیٹرڈے کو عشاء کی نماز کے بعد پھر وہ مرشد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تو تمام اسلامی بھائی اس میں ضرور شرکت فرمایا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو مدنی مذاکرے میں ہم نے سلام کے حوالے سے سنا کہ امیر سنت نے فرمایا سلام عام کرنا، تو آپ نے فرمایا مجھے خوشی ہوئی کہ اسلامی بھائیوں نے ابھی سلام عام کرنے میں مزید اضافہ فرمایا، تو انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں بھی جائیں گے سلام عام کرنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی ترغیب پر ہمارے بزرگ اسلام بھائی، پرانے سینئر اسلام بھائی الحمدللہ 8، 9، 10 محرم کے مدنی قافلے میں سفر فرمایا ہے، جس میں یہ اسلام بھائی بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل ہے، تو انشاءاللہ یہ اپنے تاثرات بھی دیتے ہیں۔ بزرگوں کا جو چینل میں
داخلہ ہوا ہے، میں امیر اہل سنت کا مشکور ہوں۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو اور امیر اہل سنت کی خدمات کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی سلامتی رکھے۔ اور یہ جو مدنی چینل بزرگوں کا شروع کیا گیا ہے، یہ دعوت اسلامی ایک بہت ہی بہترین کاوش ہے۔ یہ ایک ایسی کاوش ہے کہ بزرگ جو ہے جن کو گھروں میں بھی کوئی لفٹ نہیں کرواتے، یہ معاشرے میں یہ پیچھے کر دیے گئے لوگ ہیں، جن کو امیر اہل سنت نے پھر سے آگے کیا ہے اور ان کے دل جوئی کی خاطر یہ مدنی چینل شروع کیا ہے۔ دعوت اسلامی زندہ آباد، امیر اہل سنت زندہ آباد۔ فقیر حسین اتاری، فیصل آباد۔ الحمدللہ جو ہم بزرگوں کی تربیت کی جا رہی ہے، میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ دعوت اسلامی زندہ آباد۔ پیر و مرشد کی تو فعل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین سے خاص رغبت دی ہے۔ ہمارا تن من دن، ہماری اولاد، ہماری نسلیں پیر و مرشد پر، دعوت اسلامی پر اور اسلام پر قربان ہیں۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی بزرگوں کا مدنی چینل، بزرگوں کا مدنی چینل، فیضان مدنی قافلہ، فیضان مدنی قافلہ، فیضان مدنی مذاکرہ۔ شکریہ امیر اہل سنت، شکریہ دعوت اسلامی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بزرگوں میں رنگ پور دیا آپ نے، اپنی جوانی کی بہاریں یاد آ گئی ہوں گی۔ ہم کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، دعوت اسلامی نے ہم کو سینے سے لگا لیا۔ واقعی معاشرے میں بیچاروں کو کم لوگ پوچھتے ہیں، اٹریکشن نہیں ہوتا ہے اتنا، باتوں میں دم نہیں ہوتا، غصہ جلدی آ جاتا ہے، تو چند ایسے عوامل ان میں ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ بس اب یہ دعوت اسلامی میں اگر اب یہ ملنسار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ سلام کا بھی بہت کچھ عرض کیا میں نے، تو کم از کم روزانہ 10 کو سلام کرنا، گھر میں سلام کرنا، اپنے بچوں کو، پوتوں کو، ڈوتوں کو سلام کریں گے، بھاگ کے آئیں گے، نانا جان آ گئے، دادا جان آ گئے، جھپی ماریں گے، آپ کی تھکن دور کر دیں گے۔ میرے بچے اس طرح کرتے ہیں الحمدللہ، کبھی کبھی بھاگ کے آتے ہیں تو واقعی یوں لگتا ہے کہ یار تھکن گائیں گے، تو یہ محبت دیں گے، پیار دیں گے تو بھاگ کے آئیں گے۔ اے مت، رکھ دے، اس کو کیوں چڑھتا ہے، تو پھر یہ آپ سے بھاگ جائیں گے۔ جو کرتے ہیں اس میں اگر کوئی واقعی نقصان نہیں ہے نا، کوئی لمبا چوڑا، تو بچے ہیں، ابھی بچے تو یہی کرتے ہیں، آپ بھی بچے تھے تو یہی کرتے ہوں گے، تو ان کو تھوڑا فری ہینڈ ایسا کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ شریعت کی جہاں حد آ جائے گی نا وہاں تو روکنا ہی ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں تو خامہ کے بعض بزرگوں کی، بلکہ جوانوں کی بھی، ماں باپ کی بھی عادت یار بات میں ٹک 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 کڑ 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 بچے کو کرتے رہتے ہیں، بچہ ہے بچہ ہے۔ اب میرا تو یہی ذہن ہے، بچہ کبھی یہ خامہ کا اٹھا کے یہاں رکھے گا، ارے بھائی یہاں پڑھا رہنے دینا، تیرے کیا تکلیف ہے، تو یہ بھی اٹھا کے یہاں رکھ دے گا، کرنے دینا، کیا نقصان ہے اس میں۔ یہ آپ نوٹ کرنا ہی کر دیں گے، بچے کریں گے۔ یہ پیالے میں کوئی چیز ہے تو دوسرے کٹورے میں ڈال دیں گے، اس میں کچھ یہ ڈال دیں گے، اب آپ کو آئے گا غصہ، تو پھر بچہ آپ سے محبت سے پیچھے ہٹے گا۔ کبھی آپ کو دکھا کہ آپ میں نے یہ کر لیا، اگر آپ کو یہ لگے 100% نقصان نہیں ہے، کوئی سیٹ ہے، ماشاءاللہ، یوں کر کے بھی تھوڑا سی دل جوئی کا ثواب کما لیں۔ اب بچوں کو پیار کرنا سیکھیں گے نا، آپ کو دنیا پیار کرے گی۔ اگر بچوں کو دھتکارتے رہیں گے، اللہ نہ کرے آپ کو ایسی دھتکار پڑے گی کہ آپ کو صدمہ ہوگا۔ بچے کو اتنا ٹینشن ہوتا نہیں ہے، آپ ڈانٹا بھی نہیں بھول جائے گا، لیکن آپ کو کچھ 19-20 ہو جائے گا تو آپ سمجھدار ہیں کہ کتنا ٹینشن ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا، میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے کو یہ تجربہ ہے کہ بارہا میں نے نوٹ کیا ہے، میں کسی کے سامنے مسکراتا ہوں، سامنے والا مسکراتا نہیں ہے، مجھے صدمہ ہوتا ہے کہ یار کچی کر دی اس نے۔ ایک میں دنیا بھی اعتبار سے بولتے ہیں یار اپنی کچی ہو گئی، کچی کر دی یار، میں اتنی محبت سے مسکرا، میں لفٹ ہی نہیں کرائی ہے میرے کو۔ جب مجھے یہ ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سو کو ہوتا ہوگا کہ آپ کسی کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہونٹ بند کر کے خالی آپ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے یا تھوڑا سا مطلب یوں کرے، اب وہ مزہ تھوڑی آئے گا، ہمت بھی نہیں ہوگی کہ سمجھاؤں کیسے کہ جواب کس طرح دیا جاتا ہے، یار کہیں وہ لڑائی نہ کرتے، یا میرے سلام سے پتہ نہیں کوئی برا لگ گیا، غصہ آ گیا کیا، حالانکہ وہ نارملی اس کی عادت کے مطابق اس نے یہ کیا ہے،
غصہ نہیں آیا اس کو، جب عادت ہی نہیں ہے سلام کا جواب دینے کی. تو یوں مطلب سلام کا جواب دینے کی صورت ہے، بعض صورتوں میں جواب واجب ہوتا ہے، جواب نہ دینا گناہ ہوتا ہے. اور اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہوتا ہے کہ سلام کرنے والا سن لے، اتنی آواز اپنی نکلے. اب وہ اس کے کان بہ رہا ہے یا کوئی سا شور شرابہ وہ نہیں سن پاتا، یہ دوسری چیز ہے. اپنے تلفظ بالکل صحیح ادا ہونے چاہیے کہ اس کو سنیں جواب اس کا. لیکن ایک تعداد ہے سلام کا جواب نہیں دیتی ہے، بلکہ سلام ہی نہیں کر رہی. اور کیا حال ہے، اور سناؤ جی، ہاں جی ٹھیک ہے، چنگے ہو، اس طرح ہماری ترکیب ہوتی ہے ملاقات کی. تو یہ طریقہ نہیں ٹھیک. اسلامی طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ 30 نیکیاں ملیں گی. السلام علیکم کہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، 10 نیکیاں ملیں گی. تو 20-30 کی بھی اللہ حرص ہمیں عطا کرے کہ ہم تھوڑا سا زبان اور چلائیں گے 30 نیکیاں لینے. وبرکاتہ مغفرت تو ہو تک نہیں ہے، وبرکاتہ بس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک ہے. اب بعض من چلے مذاق میں کہتے ہیں آپ کے بچے ہمارے غلام، اور یا پتہ جنت تو حلال ہو دوزخ و حرام ہو، کیا کیا اپنی بولی بول رہے تھے. اس کی توبہ یہ نہیں بولنا ہے، نہ یہ سنت ہے، بلکہ دوزخ ہو جنت ہو، یہ سب مطلب عربی جملے بھی نہیں ہے، سنت کے جملے بھی نہیں ہے. سنت وبرکاتہ تک ادا ہو جائے گی. آپ کے بچے میرے غلام، یہ تو 100% شرارت ہے. یہ تو سلام کا ہے، اس میں ایڈ کرنا توبہ، کوئی بھی لفظ ایڈ کرنا ہی نہیں ہے. اور بچے کو سکھائیں جب یہ جانے لگے نا، تو کہیں مذہبی ماحول میں یہ اللہ حافظ یوں بولتے ہیں، تو یہ بھلے بولے، ان کو پہلے یہ بولے کہ یہ بولے السلام علیکم اللہ حافظ. سلام پہلے کرے کہ سلام آتے ہوئے بھی سنت ہے اور جاتے ہوئے بھی کم نہیں ہے، بارش میں لکھا ہے یہ بھی سنت ہے. یہ جاتے ہوئے سلام کرے. اب دعا اللہ حافظ خدا حافظ تو یہ بھلے سلام کے بعد کرے. ہمارے یہ ہوتا ہے السلام علیکم اگر کہتے ہوئے واپسی میں خدا حافظ، اچھا میں چلتا ہوں، بائے بائے فی امان اللہ. تو بائے بائے تو جہاں سے نکلی ہے نا، جس قوم کے پاس ان کو واپس دے دو. ہم مسلمان ہیں، ہے نا، ٹاٹا بھی نہیں کو سوپا، سمجھے. ہم فی امان اللہ کہتے ہیں، اچھی بات ہے، دعا ہے، لیکن وعلیکم السلام کی سنت ادا کر کے ہم پھر فی امان اللہ کہیں. ترتیب یہ ہے اس کی اگر کہنا ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو بزرگوں کا مدنی قافلہ بھی یہاں سے سفر کیا، کوئی تعداد، کوئی کارکردگی، کوئی لے لے یار ٹناٹن، تو مزہ آئے گا. بزرگوں کو دیکھ کر کئی بزرگ اللہ کے بھی مسجدوں کے محلے کے نکل آئے ہوں گے کہ اپنی برادری آئی ہے، چلو بھائی. یہ ہوتا ہے الجنس یمیل الی جنسہ، ہر جنس اپنی جنس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یعنی ہر جنس اپنی جنس کی طرف کھینچتی ہے، اٹریکشن اس کو ہوتا ہے. بچے کو دیکھ کر بچے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اسی طرح بزرگوں کی طرف بزرگ مائل ہوں گے. آپ باہر ملک کہیں دنیا میں جائیں گے، پاکستانی نظر آئے گا تو آپ کو یوں تھوڑا ہوگا کہ یار اپنا وطن ہی ہے. یہ قدرتی ہوتا ہے، اپنے گاؤں کا ہو شہر کا ہو، یہاں بھی تو آپ کو تھوڑا اٹریکشن ہوگا، توجہ جائے گی. یہ فطری امر ہے، اس میں حرج نہیں ہے جب تک کوئی شرعی خرابی نہ ہو اس معاملے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کارکردگی نہیں ہے بزرگوں کی. کتنے بزرگوں نے انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ یہ تھوڑا اور انشاءاللہ مدینہ مدینہ الحمدللہ. یہاں بھی تھے کافی اسلامی بھائی، لیکن وہ کارکردگی انشاءاللہ نہیں. ماشاءاللہ یہ جنہوں نے دی نہیں کارکردگی، یہ فیصلہ آباد سے بہت سی الحمدللہ. ماشاءاللہ جو ماحول میں رہ کر بزرگ بنے نا، ابھی آدھے ہوتے بزرگ ہی ہے، تو وہ بزرگ اپنے زیادہ انشاءاللہ سنجیدگی اور مطلب ترکیب مدینہ مدینہ سنبھال بھی لیں گے انشاءاللہ. اور ایسوں کی تعداد کم نہیں ہے اپنے پاس. اللہ اگر توفیق دے اور ڈھونڈنے والے بنے تو ہزاروں. 42 سال 41 سال ہو گئے دعوت اسلامی کو. گلزار حبیب میں شروع سے جو آنے والے ہیں نا، کراچی کی بات کر رہا ہوں. اب یہ کہ جو شروع سے آتے تھے، اب ان کی بزرگی میں کیا کمی رہ گئی ہوگی. اس طرح دیگر شہروں میں، دیگر ملکوں میں دعوت اسلامی کا کام جہاں جہاں بہت پہلے شروع ہو گیا، تو جو شروع سے آتے ہیں وہ اب تقریباً بزرگوں کی منزل پر پہنچ گئے ہوں گے. تو ماشاءاللہ بہت کام بڑھے گا. اور انشاءاللہ یہ دیگر بزرگوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اڑوس کو پڑوس کو دعوت دیتے رہنی ہے. دعوت دینے میں پیسہ نہیں لگتا ہے.
मदनी चैनल देखा करो, इतने बजे से इतने बजे तक बुजुर्गों का आ रहा है, देखा करो। फिर फॉलो अप किया, इसको फ़ोन कर दिया, पूछ लिया बाद में कैसा, मतलब कैसा लगा, पूछने में खतरा है वो शायद झूठ बोल दे, मज़ा ना आया होता। देखा तो ये बोलोगे तो शायद झूठ बोल दे, खुदा न खास्ता ना देखा हो तो बोल दे हाँ देखा। यार अगर बोलूँगा नहीं देखा तो ये बुजुर्ग जो है मेरी बुजुर्गी की कहीं खबर ना लेने, तो खबर लेनी नहीं है, खास तरगीब दिलाते रहना है। और ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले से नहीं कहने कि मुरूवत में झूठ बोल दें। हमको तो गुनाह से बचकर दूसरों को बचाना भी है ना, तो जुमले नप्पे तुले पोजीशन देखकर, समझे, यहाँ फुला प्रोग्राम आ रहा है बुजुर्गों का, जो स्पेशल प्रोग्राम होते हैं ना, ये किसी कभी इसकी दावत की मजीद धूम मचाए कि परसों जो है ना इतने बजे फुला प्रोग्राम बुजुर्गों का आ रहा है, या भाई फुला का बयान हाजी इमरान का बयान है मसलन, तो इनका बयान है बुजुर्गों में, तो वो लाइव है, तो आप ज़रूर यूँ करके मौके से भी दावत, और मोबाइल फ़ोन पर तो कभी सोती बेगम किसी को देकर चला दिया, तो ये अपने तौर पर ये किया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह इस तरह सब कोशिश करेंगे तो बढ़ेगा काम। तो दावत इस्लामी का जो हुआ, हमने खाली ऐलान करके इश्तिहार छाप कर जमा नहीं कर दिया। इश्तिहार तो जलसों में एक से एक छपते हैं, एक से एक मुकर्रिरीन की तस्वीर, क्या क्या होता है नाम, और होते भी बड़े बड़े मुकर्रिर। क्या होता है, जलसा हुआ, नारे लगे, खलास, ये पता भी नहीं होता। दावत इस्लामी ये नहीं है। दावत इस्लामी दिन रात डबल 12 घंटे 25 घंटे है, सुबह शाम एनी टाइम एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल डबल 12 घंटे बगैर रुके चल ही रहा है ना, तो ये दावत इस्लामी है, ये कोई रस्मी कोई प्रोग्राम नहीं है। तो हर वक्त इसको मतलब चलना है, और चलने की सूरत है आप चलते रहेंगे तो ये चलती रहेगी। आपको जिस दिन स्टॉप लग गया ना तो इसको भी स्टॉप लग सकता है, तो चलते रहें, जन्नत की तरफ बढ़ते रहें, मगर वाया मदीना इंशाअल्लाह, सुन्नतों पर अमल करते करते इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डॉक्टर अब्दुल हफीज अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ चाइना से। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है, हुजूर बाज़ औक़ात हम कोई अच्छा काम करें, कोई नेकी का काम करें, जैसे आज़ान दें, तिलावत कलाम पाक करें, या नात शरीफ पढ़ें, या बयान वगैरह करें, तो वो बाज़ लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, और उस अमल के दौरान अपनी तारीफ सुन के ना तो बाज़ औक़ात नीयत में कुछ फतूर आ जाता है कि जैसे लोग हमें देख रहे हैं, लोग कितनी तारीफ करेंगे, लोग कहेंगे कितना अच्छा ये पढ़ रहे हैं। हुजूर इस कैफियत के बारे में रहनुमाई फरमाएं कि ये कैफियत पैदा हो जाना, क्या इस तरह से हम गुनाहगार हो जाएंगे? कैफियत पैदा होने में गुनाहगार की तो क्या सूरत है, तो अपने इख्तियार में ही नहीं है, और इसमें कोई इतना बड़ा मतलब कोई इश्यू नहीं है। होता आदमी को मतलब अच्छा लगता है कि कोई अच्छा कहे तो अच्छा लगता है, कोई अच्छा कहे उसका गिरेबान तो नहीं पकड़ लेंगे यार, हमारी तो नहीं कर देंगे। उसको अच्छा लगा है वो अच्छा करता है, उसको अगर उसकी नीयत साफ है, दिल जो ही मुसलमान की करना चाहता है तो सवाब का हकदार है। अलबत्ता अपने तौर पर इस्तिग़फ़ार करता रहे, और ये ज़हन बनाए रखे कि जो कुछ मेरी आवाज़ अच्छी है या मैंने अज़ान अच्छी दी वगैरह, तो ये इसमें मेरा कमाल कोई भी नहीं है, ये मेरे रब का करम है, मेरा कमाल मेरे रब का करम है। ये ज़हन बना कर रखेंगे तो इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं होगा। इस्तिग़फ़ार कर लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, नहीं बस ये मेन ये कि अपना कमाल ना समझे। जिस दिन अपना कमाल समझा ज़वाल लगा इसको, न उसकी तरक्की वो न उसको उतार शुरू हो जाएगा। रब का करम समझे और दिल से समझे। अल्फाज में तो सब कहते हैं, दिल में भी यही हो क्या वाकई मेरे अगर मेरी आवाज़ फटी हुई होती तो मैं क्या कर लेता। मैं अल्लाह अकबर शुरू करता और लफ्ज़ से अल्लाह का अलिफ ही ना निकलता, मेरा गला बैठ जाता, तो मैं क्या करता। मेरे रब ने मुझे ये सादत बख्शी, मैं बैठा हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ, क्या मैं समझूँ मेरा कमाल है, मेरे रब का कमाल है। ये दोनों तशरीफ फरमाए उलमाए किराम, तो क्या ये अपना कमाल समझेंगे? रब का ही कमाल है ना, करम है, रब का करम है कि इनको बिठाया यहाँ और इनको हाफ़ज़ा दिया, इनको इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ दी और ये सादत दी कि ये मतलब हम तक दीन पहुँचाते। इसी तरह हर एक ने जो बैठे हों भी अपना कमाल ना समझे। यार लोग सिनेमा घर में भी तो बैठे होंगे, कहीं गुनाह करने में मसरूफ़ होंगे, कहीं कोई चोरी कर रहा होगा इस वक्त, कहीं कोई किसी को फायर कर रहा होगा, है ना, कोई क्या कर रहा होगा, गालियाँ बककर लड़ाइयाँ करके बैठा होगा। और अल्लाह का कितना बड़ा मुझ पर करम है कि मैं मस्जिद में बैठा हूँ। कोई करम है, मेरा कमाल नहीं कि मैं मस्जिद में बैठा हूँ। तो सब नज़र जो है ना अल्लाह की तरफ हो कि
सब चाहे कुछ नहीं होगा, होगा वही जो रब चाहे, बस रब चाहेगा तो होगा। रब ने चाहा मुझे यहाँ बिठा दिया, उसका कर्म हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में सवाल अर्ज है कि जब किसी के यहाँ रिश्ता लेने जाएं और रिश्ता पसंद ना आए तो क्या अंदाज होना चाहिए वापसी पर कि बंदा झूठ, गीबत, चुगली से भी बचे और किस अंदाज में उनको जवाब दे दिया जाए कि काम भी पूरा हो जाए और गुनाह से भी बचे। मेरे और मेरे घर वालों के लिए बेहिसाब बख्शिश की दुआ फरमा दी। रिश्ता लेने जाते हैं तो यानी कि देखने जाते हैं, पहले इंक्वायरी करने, उस वक्त तो कोई अपने कमेंट्स देता नहीं है। आमतौर पर समझदार आदमी कमेंट्स नहीं देगा। अगर सामने वाले भी पूछते नहीं होंगे कि क्या इरादा है, अगर पूछ भी लें इंशाअल्लाह मशवरा करते हैं। यूं घर के आदमी मशवरा तो करना ही होता है ना, इंशाअल्लाह मशवरा करते हैं। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह हम दोनों के हक में बेहतर फरमाए। ये मीठे मीठे बनकर मुस्कुरा कर बेचारों ने चाय पिलाया, शरबत पिलाया, अब एकदम मुंह चढ़ा के निकल जाओगे तो ये वैसे भी तो नहीं ठीक ना। अब पसंद ना आना और बाद में अगर कहे भी तो ये मतलब ना कहा जाए कि हमको रिश्ता पसंद नहीं है। अगर मुशावरत में कुछ, मुशावरत में ही तय होता है बड़े बूढ़ों से, खानदान और तो मुशावरत हमने की, अभी हमारा जहन यहाँ है नहीं। दुआ फरमाए अगर जहन बन गया इंशाअल्लाह हम आपसे रब्ता करेंगे। रिश्ता खराब है, बुरा है, ये करेंगे तो दिलाजारियाँ और गुनाहों के दरवाजे खुल सकते हैं। तो हर चीज़ में हिकमत अमली हो और एहतियात होनी चाहिए कि वो बोलते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। एक मुहावरा ये, एक मुहावरा ये, गुड़ से मरता हो तो जहर ना दिया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो बाद वक़्त इसका हल ये भी निकालते हैं कि ये अंदाज इख्तियार करते हैं कि इस्तिखारे में मना आया है। जब देख रहे हैं उसको तो इस्तिखारा किया नहीं है, इसलिए तो मुशावरत करेंगे। फिर मतलब ये कि अगर उनमें कोई खूबी है ना सामने वाले में, अगर है तो बयान कर दी जाए, सुभान अल्लाह आपकी बेटी, तो औरत ही बोलेगी ज़रा कि माशाअल्लाह, मगर हमने इस्तिखारा करवाया तो इंशाअल्लाह यही हमारे हक़ में बेहतर होगा। अल्लाह करीम हमारा दोनों का मतलब भला करे, फरीक़ैन जो है इनका कहीं ऐसा रिश्ता हो जाए कि दोनों सुखी रहें। इस तरह की तरह के बोलना आना आता हो ना तो आदमी ऐसे बोल सकता है जिससे सामने वाले का दिल नहीं दुखेगा। एक तो मैं ये इस्तिखारे वाली बात अर्ज़ कर रहा था कि उमूमी तौर पर इस्तिखारा फिर करवाते हैं, आसान होता है तो लेकिन अब मिसाल के तौर पे समझ नहीं आ रहा वहाँ पे करवाना, तो बसा औक़ात ऐसी इत्तलात भी मिलती हैं कि वो गलत बयानी के तौर पे कह दिया जाता है कि इस्तिखारे में अच्छा नहीं आया। और दूसरा ये कि हो सकता है कि इस्तिखारा वो डरते हैं कि अगर इस्तिखारे में हाँ गया और अब हमारा जहन बन नहीं रहा और हमने हाँ बोल दिया तो ये यानी अब दिल नहीं कर रवा करने का, जो इत्तलात हैं, जो तफ्तीश की गई है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ जहन नहीं बन रहा, चाहे वो लड़की वालों की तरफ से हो चाहे वो लड़के वालों की तरफ से हो। उमूमी तौर पर ये लड़की वालों की तरफ से होता है, क्योंकि लड़के वाले तो बाकायदा रिश्ता डालते हैं, यानी जैसे देखने के लिए आए लड़के वाले। हमारे जो माशरे का एक आम तौर पे जो बिलखुसूस हमारे इलाकों का है कि लड़के वाले देखने के लिए गए हैं उनके घर से अफराद, अब उनको समझ आता है तो वो रिश्ते की बात करते हैं, नहीं आता तो वो तो बसा औकात पलट कर जवाब भी नहीं देते, हाथों बात कर लेते। नहीं वो तो पलट के जवाब देते भी नहीं है बसा औकात। अब होता यह है कि जब वो रिश्ता डालते हैं फिर लड़की वालों के हाथ में होता है कि वो हाँ बोले या ना बोले। उनको फिर ये परेशानी आती है कि बसा औकात जो तफ्तीश करते हैं, मालूमात लेते हैं, तो वो सही नहीं आती। तो अब एक तो इसमें फिर वो इस्तिखारा करवाते हुए घबराते हैं, और बसा औकात इस्तिखारा करवाते हैं तो उसमें हाँ आ जाता है, क्योंकि इस्तिखारा ज़न्नी चीज़ है, तो अब उनको समझ नहीं पड़ती कि अब क्या करें, तो बसा औकात तो वो गलत बयानी से काम ले लेते हैं कि इस्तिखारे में मना आ गया। एक तो ये इरशाद फरमा दें इस हवाले से। दूसरा ये इरशाद फरमा दें कि ज़ाहिर है कि ये एक सारी ज़िंदगी का मामला है और बेटी देनी है, तो इसमें बसा औकात ऐसा होता है कि माँ बाप सुस्ती बरत जाते हैं। एक आधी चीज़ देखकर फिर पूछा जाता है तो हमने फ़लाँ के भरोसे पर ऐसा कर लिया था और बाद में हमें पता चला कि हमारी बेटी के साथ अब ये मामलात हो रहे हैं। तो इस हवाले से भी आप कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें। इस्तिखारा अगर करवाया है तब भी ज़रूरत ना हो ना तो डिक्लेयर ना किया जाए, जबकि करना नहीं है और हाँ आ गया है
اور اگر آپ جھوٹ بولیں گے کہ استخارے میں نہ آیا ہے جبکہ آیا ہاں ہے، دل ہو نہیں رہا، تو پھر بتایا نہ جائے استخارے کا. جھوٹ بولیں گے ظاہر گناہ گار ہوں گے. اور واقعی انکوائری اصل مسئلہ ہے کہ انکوائری پوری کرتے ہیں، بارہا انکوائری پوری ہوتی ہے. جس سے انکوائری کی جاتی ہے وہ صحیح جواب دیتے نہیں ہیں، بولتے یار اپنے کہاں بگاڑیں گے. جس کو بھی انہیں پوچھیں گے نا بہت اچھی جگہ ہے، ماشاءاللہ بہت شریف بچی ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، یہ مجھے تجربہ ہے اس کا. یہ بولتے ہیں اور لڑکے والے کو یہ یا ہوم کر کے آگ میں ڈال دیتے ہیں، یا لڑکی والے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں. یہ عوام جو ہے تو جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہوتا ہے. یعنی اس میں اس کی صورت ہے کہ اگر معاملہ اس کے مشورے پر ہی موقوف ہے تب تو اس پر واجب ہو جائے گا کہ درست مشورہ دینا پڑے گا اس کو، ورنہ کوئی تباہی مچ رہی ہے، فتنہ ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، گناہ کے دروازے کھلے ہوئے ضروری ہے. اور مشورہ 100% اس کو صحیح دینا پڑے گا. اس کی برائی اس کو معلوم ہے تو اس کو بتائے. تو اب یہ کہ جھوٹ نہیں بولے گا کہ یہ بہت اچھا ہے رشتہ، خاندان درست ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہاں معاملہ یہ ہوگا کہ ہر ایک ڈرے گا صحیح مشورہ دیتے ہوئے کہ پتہ ہے کہ لڑکی صحیح نہیں ہے یا لڑکا صحیح نہیں ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لڑکے کا پورا خاندان مجھ پر چڑھائی کر دے گا، تم نے ہمارا رشتہ توڑوا دیا. اور لڑکی والے بھی دشمن بن جائیں گے، یہ امکان رہے گا کہ تم نے ہمارا رشتہ ہوتے ہوتے توڑوا دیا، تمہارے ہاتھ میں کیا آیا. یہ امکانات رہیں گے. تو اب اس میں یہ کہ جہاں ہے نا الفتنۃ اشد من القتل ہے نا قرآن کریم میں، اب وہ یہاں فتنے سے جو بھی مراد ہے وہ الگ اس کی تفسیر، یعنی کہ فتنہ بعض صورتوں میں قتل سے بھی خطرناک ہوتا ہے. یہ قرآنی سمجھو کہ کیا کہیں گے، استعارہ کہیں گے اس کو، محاورہ. تو یہ کہ فتنہ خطرناک ہوتا ہے، مارا ماری، قتل و غارت گری بھی ہو سکتی ہے اگر رشتہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ صحیح نہیں. تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ شریعت ہر صورت میں ہم کو واجب نہیں کرے گی کہ ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں، لیکن جہاں مطلب ایسے حالات نہ ہو تو جب بھی مشورہ دینا ہے تو درست دینا یہ واجب ہے. جھوٹ نہ بولے، اس میں کچھ چھپائے نہیں، چبائے نہیں، 100% جو بھی صحیح دے دے بول دے. لیکن یہ کوئی مرد کا بچہ ہوگا وہی صحیح دے گا، یہ بھی محاورہ ہے. بچہ مرد کا نہیں ہوتا، عورت کا ہوتا ہے، لیکن شیر کا بچہ شہری ہوتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ انکوائری میں تو مسائل ہیں، یہ کیونکہ مجھے پتہ ہے نا، تجربات ہیں اس کے، اور ایسے ایسے پتے لوگوں کو ہوتے ہیں خاندانوں کو کہ جس کی انتہائی. اچھا ان میں توڑوانے والے بھی آتے ہیں، اس کا بھی مجھے تجربہ ہے. میرے ساتھ بھی، میرے پاس بھی توڑوانے والے آئے تھے جب میرا رشتہ ہوا تھا نا، اور مجھے پہلے سے اطلاع کر دی گئی تھی کہ بعض لوگ آپ کے پاس آئیں گے. ان کی انکوائری اتنی پاورفل ہوتی ہے خاندانوں کی کہ آپ کے پاس بعض لوگ آئیں گے، یوں بولیں گے، آپ سمجھ جائیے گا. تو یقین مانے میں وہ جب میرا رشتہ ہوا ان دنوں تو ہم گاؤں گلی میں رہتے تھے، بادامی مسجد میں کوئی نماز پڑھ کے میں نکلا تو 2-3 آدمی میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے کان بھرنے شروع کر دیا، یوں ہے یوں ہے یوں ہے. میری اپنی شادی کی بات کر رہا ہوں، یہ تجربہ میرا. یوں ہے کیوں ہے، الحمدللہ پر نانا بن کر بیٹھا ہوں، آج تک لڑائی نہیں ہوئی الحمدللہ. نہ کبھی روٹ کرو گھر بیٹھی ہے جا کے، نہ کبھی میرے دینی کام میں ایک ذرے کا کروڑواں حصہ اس نے رکاوٹ کھڑی کی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ ہے کان بھرنے والے بات. اچھا اسی طرح کچھ اور بھی جب میں نے رشتے کیے نا اس میں بھی میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آنے والے نے آنا ہے، یہ اطلاع نہیں تھی. ایک اس بار جو دوسری بار اطلاع نہیں تھی لیکن آنے والا آیا اور دبنگ آدمی آیا اسی برادری کا، یوں تو یوں تو یوں. میں چونکہ پہلے کا تجربہ کار تھا اور میں اس میں اپنے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ ان کو توفیق دے، ہدایت دے. تو اس نے بھی اگر ایسی باتیں کی کہ بس کہ حاجت نہیں تھی، گناہوں بری گفتگو تھی جس کی واقعی حاجت نہیں تھی. اب چلو میں نے مطلب ایک بات ہے، وہ کسی کی بیٹی سے یا بیٹے سے رشتہ کیا بھی ہے اور اس کا باپ یا دادا یا چاچا کوئی کرپشن ہے بھی اس کا، اس سے ضروری ہے کہ اس کو اثر پڑے گا ہی پڑے گا. اچھا بعض کرپشن ایسے ہوتے ہیں یا گناہ ایسے ہوتے ہیں 100% گناہ ہے، لیکن ان کا اثر جو ہے وہ اتنا لیا نہیں جاتا. جیسے کہ اگر آپ نے کہیں شادی کی بات ڈالی
اور پتہ چلا کہ بیٹی کا باپ جو ہے نا جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، اب بچ کے رہنا، سنبھل کے رہنا، پکا بے نمازی. آپ کیا اثر لوگ یار اس کا؟ شادی اس کے باپ سے تھوڑی کرنی ہے اپنے کو یار. بیٹی تو انشاءاللہ نماز پڑھتی ہے اور پڑھے گی، قرآن نہیں سیکھی گی میں سکھاؤں گا انشاءاللہ. تو یوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ معاشرہ بڑا مطلب یعنی جو بھی آپ اس معاشرے کا پہلو اٹھائیں گے نا تو یوں لگتا ہے جیسے آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، کوئی کسی کی اچھائی دیکھ ہی نہیں سکتا. چڑھاتے ہیں، کان بھرتے ہیں، خامہ خانہ کا اپنی آخرت داؤ پہ لگاتے ہیں، اور ان کے باتوں میں جو آ گیا ان کے خاندان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. دیکھنے میں اچھے لگیں گے آپ کو، بات داڑھی والے ملیں گے، اس میں مذہبی باتیں کریں گے، اللہ اور رسول کی باتیں کریں گے، آپ کے ہمدرد ہوں گے کہ میں ہم کو یہ آخرت کے فائدہ، دنیا کا فائدہ، اب پھنس جاؤ گے، مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اسی باتیں آ کے کریں گے، ہوگا پیچھے کچھ بھی نہیں. تو اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے. سچ بولنا چاہیے اور چپ مرنا چاہیے. اسے مقبر کہ ہمارے دو الفاظ کی وجہ سے کہیں سنوں دو خاندان، دو دل ملتے ملتے دور ہو جائیں اور ہم آخرت میں پھنس جائیں. بلکہ کوئی سی صورت ہو کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر بتایا نہ جائے. ہر بات بتانے کی، جیسے میں نے کہا بے نمازی، سسر بے نمازی ہے، بڑا بھائی بے نمازی ہے، یا بڑا بھائی تو اب نہیں ہوتا، کیا ضرورت ہے یار؟ نماز کون پڑھتا؟ تم کون سی پڑھتے ہو نماز یار؟ کتنی پڑھتے ہو نماز؟ نماز پڑھنا فرض ہے، نہ پڑھنے والا گناہگار جہنم کا حقدار ہے. لیکن یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے کوئی گھر خراب نہیں ہو رہے. ہاں جواڑی ہے جس سے آپ جس سے رشتہ کر رہے ہیں اور آپ کو 100% پتا کہ جواڑی ہے اور آپ ہیں ہمت والے اور آپ ان کو بچانے کا 100% ذہن ہے آپ کا، بھلے بتائیں آپ کی جواڑی ہے، سوچ سمجھ کے کرنا. اور آپ اس کے پاس بالکل پروف ہو تو اور نیتوں کو بچانا تو عرض نہیں ہے کہ جواڑی خاندان خراب کرے گا، بے نمازی خاندان خراب نہیں کر رہا. یہ ہمارا مشاہدہ ہے. اچھا نمازی ہے، اس کو نماز آتی کتنی ہے یار؟ کون لاکھوں میں کوئی نمازی ملے گا، ہزاروں میں ملے گا جس کو صحیح درست 100% نماز آتی ہو. حالات ایسے. تو بعض گناہ جو ہے نا اگرچہ گناہ ہوتے ہیں لیکن معاشرتی طور پر ان کا اتنے اثرات معاشرے پر نہیں پڑ رہے. ورنہ تو مشکل یہ ہو گئی ہے کہ شاید 99% مسلمان بے نمازی ہوں گے اس وقت، میرا گمان ہے. مسجدیں ویران پڑی ہیں، خالی پڑی ہیں. تو یار اب رشتے کرو گے یا کیا کرو گے یار؟ کہاں جاؤ گے رشتے نہیں کرو گے؟ تو بیٹی وہ بھی بے نمازی، تو بیٹا وہ بھی بے نمازی، رشتے کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اب رشتہ مل نہیں رہا، یہ بڈھی ہو جائے گی، یہ بڈھا ہو جائے گا تو دے بھی دیتے ہیں، سب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں بھلے سود کھاتا تب بھی دے دیں گے. سودی کاروبار کرتا یا سودی ادارے میں سروس کرتا تو آج کل جنٹل مین مانا جاتا ہے، افسر ہے، چاہے سود کھاتا ہو بچو اور سانپ جمع کر کے رکھیں تمہارے لیے پال کے کہ آ جاؤ مل جل کے ڈسوائیں گے اپنے آپ کو. لوگ جا ہی رہے نا. تو اس لیے مطلب موقع محل دیکھ کر سوچ سمجھ کر بات کی جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بہرحال گناہ سے ہر صورت میں بچ کر کام کرنا ہے. ہم جیسا ہے تو داڑھی بھی دیکھے گا، امامہ بھی دیکھے گا، زلفے بھی چیک کرے گا. اب ایسے معاشرے میں ہے کتنے یار؟ لائیں گے کہاں سے؟ مدنی ہے کہ نہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے. اچھا درس نظامی کیا ہوا ہے، کہاں کیا ہوا ہے؟ اچھا وہاں سے مدنی ہونا چاہیے یار. اپنے ماحول کا نکلا ہوا تو دل زیادہ ٹھکے گا. ایک میں اپنی جو بھی اپنی سوچیں بتا رہا ہوں تو لائے کہاں سے یار ایسا مدنی؟ اچھا پھر مدنی بھی ہے تو واقعی مدنی وہ مدینے والی سنتوں والا مدنی ہے یا درس نظامی کر کے کچھ اور کچھ کر رہا ہے مدنی ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ جنت کی چھاپ بھی لگ گئی اس پر کہ مدنی اس جنتی بیٹی کو لے کر جنت میں جا کر موج کرے گا. ایسا تو نہیں ہے. تو کماتا بھی ہے نہیں، کتنا کماتا ہے یہ دیکھتے ہیں لوگ. دیکھنا چاہیے، کوئی حرج نہیں. لیکن فاقہ مستی ہوئی تو بھی مشکل ہو جائے گی کہ وہ فقر کفر تک لے جاتا ہے نا. تو ہے مطلب سب دیکھنا ہوتا ہے، مگر آخرت بھی دیکھے، دنیا بھی دیکھے، سیرت بھی دیکھے، صورت بھی دیکھے. اب وہ صورت خراب ہوگی اور اگر ذہنی طور پر فریق ثانی جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئی یا وہ اس کا حسن اچھا ہوا تو بھی گھر چلے گا نہیں. تو ایکول معاملہ ہوگا نا، بیلنس تو چلے گا. ڈس بیلنس ایک بھی ہوا تو مشکل ہو جائے گا. یہ سب دیکھنا اور لوگ دیکھتے ہیں. میں کہوں یا نہیں کہوں، سیرت نہیں دیکھتے، صورت تو دیکھتے ہیں.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक इंक्वायरी वाला एक चुटकुला ही बोल सकता हूँ मैं। तो किसी से इंक्वायरी की गई होगी तो उसने यही बताया कि ये मतलब यूँ तो कोई ना शराबी है ना जुआरी है, कोई इस तरह की तो कोई ऐसी लत तो नहीं है। और वजह से नमाज ना पढ़ना, फिल्में ड्रामे देखना, वो कहा ये दाढ़ी नहीं है। तो वो जो इंक्वायरी लेने आया था ना वो हंस रहा था कि ये जो कुछ बोल रहा है जिसके बारे में उससे 4 कदम तो मैं आगे हूँ, लड़की उसे हो सकता है कि 10 कदम आगे होगी। तो दाढ़ी कहाँ से लाएगा यार? आए कितने माशरे में दाढ़ी वाले। तो इस तरह बदकिस्मती है कि हमारे माशरे में बेनमाजी बुरा नहीं तस्वुर किया जाएगा ना कि ये भी कोई बहुत बड़ी बुराई है इसके अंदर। बेशक हालांकि गुनाह अजीम है नमाज ना पढ़ना। बेशक। तो भाई ये है माहौल। बहुत देने के इस तरह की तो कई बातें हैं। व्यापार में झूठ बोलता है तो खुश होंगे यार, कमाता है ना, कमाता चालाक है। इसके लिए तो जो सेलमैन होता है ना, जो इस तरह का 420 टाइप का, मुझे बहुत पुरानी मालूमात है कि जैसे कपड़े की दुकानें होती है ना, कोई सेलमैन हुआ 420, समझे, कच्चे रंग को पक्का रंग के कर टिका देगा, पुराने कपड़े को नया फैशन करके पहना देगा उसको। और इस तरह का जो सीन पाट करता होगा ना, उसकी तनख्वाह अच्छी होगी। दूसरे दुकानदार इसकी हिर्स करेंगे, ऑफर करेंगे, तुमको हम इतना दिखाया। अब इस माहौल में अब क्या करे आदमी यार? झूठ, धोखा, फ्रॉड, इसकी भी तो हौसला अफजाई करने वालों की तादाद कम नहीं है। महंगाई बढ़ गई, इसमें किसका कितना हाथ है? अगर ये हम मतलब इसके डीप में जाएंगे ना तो मेरा हाथ भी निकलेगा, आपका हाथ भी निकलेगा। समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, रिश्वत बहुत बढ़ गई है। हम इसके डीप जाएंगे ना तो मेरा हाथ भी निकलेगा, आपका हाथ भी निकलेगा। हम सब इसमें मुलव्वस हैं। मैं सही बोलता हूँ, मैं मिसालें देकर भी शायद आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। रिश्वत का तो मुझे पता है कि वो मगजमारी से बचने के लिए रिश्वत देने की आदत वालों को देखा है मैंने। जान छुड़ाना, कौन बहस करेगा, कौन मगजमारी करेगा, देते रहते हैं अपने, तो यार यूं डाल देते हैं, अपना काम हो जाता है। तो ये हमने आदत खराब की। कुत्ते को हड्डी डालेंगे नहीं, भूखा मरेगा सेट हो जाएगा। हम भूखा रहने नहीं देते, उसको हड्डा डालते रहते उसके मुंह में, ये रिश्वत छोड़ता ही नहीं है। बाकायदे कुत्ते को हड्डी, ये आसान लफ्ज है। और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। तो खाली लेने वाला ही नहीं है, देने वाला भी जहन्नमी है। तो यूं मतलब यानी कि पूरा आवेगा हवा कहते हैं ना, बिगड़ा हुआ है। तो गुनाह जहाँ जहाँ माशरती गुनाह पाए जाते हैं ना, तो एक बार आप नोट करेंगे इसमें दोनों पार्टियां मुलव्वस होती हैं, गुनाह मिलजुल के हो रहा होता है। नत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि हमें कोई अगर सलाम दे कि मेरे रिश्तेदार को सलाम दे देना, तो हम उन्हें किस तरह सलाम दें? क्या ये सलाम देना ज़रूरी है? बराए कम रहनुमाई फरमा दीजिए। मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुमा बिग़ैरि हिसाब। इसमें रिश्तेदार हो या कोई मुसलमान सलाम फुला को कह देना है ना। तो अब अगर आपने हाँ कर दी तो सलाम पहुंचाना वाजिब हो जाएगा। हाँ नहीं कि चुपचाप सुन लिया तो वाजिब नहीं होगा, ठीक है ना, जबकि हाँ नहीं पाई गई। अच्छा, अलबत्ता बाज लोग कह देते हैं याद रहा तो कहूँगा, ये नहीं कहा जाएगा, इससे सामने वो झटका लगेगा। या वो मुंह फटो तो लेक्चर देगा, हाँ भाई हम गरीबों का सलाम कहाँ पहुँचाएंगे, आपको कहाँ याद रहेगा। अब सुनो, अब चुपचाप सुनो, फड्डा नहीं करना, झगड़ा हो जाएगा नहीं तो ये बोलना आदमी को झटका देता है। ये ऑलरेडी मसला मौजूद है कि अगर भूल गए तो माफ है, भूल गए तो इस पर सलाम अर्ज करना भूल गए, किसी को पहुंचाना भूल गए तो कोई मतलब आप पर शिक या दफा लगेगी नहीं। तो आप ये कह दें इंशाअल्लाहुल करीम, इंशाअल्लाह, ठीक है ना। अब इंशाअल्लाह कहने में इंशाअल्लाह के माना पर नजर हो, अल्लाह ने चाहा तो ये माना है। और इंशाअल्लाह कहते वक्त ये ना हो कि मैं टाल रहा हूँ, बाद लोग टाल रहे होते हैं, मैंने वायदा थोड़ी किया था, इंशाअल्लाह कहा था। तो फिर ये कि ये लफ्ज़ इंशाअल्लाह कहने के ताल्लुक से तो इंशाअल्लाह उस सूरत में मुनासिब है कहना कि नीयत तो है कहने की, इंशाअल्लाह कह दूंगा तो उसका दिल खुश होगा। और कह भी दें अगर, हाँ
कहना तो है, लेकिन इंशाअल्लाह से वादा नहीं रहेगा, जबकि माना पर नजर हो तो न कहेंगे, कसदन भी तो गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन ये उसके लिए जो अहले इल्म होते, ये इंशाअल्लाह के माना को समझते और उस वक्त कहते माना उसके ज़हन में हो, वरना टालने वाली बात ना हो। तो ये जैसा मौका वैसा इसका हुक्म मुरत्तब होगा। और भले इंशाअल्लाह कहा आपने, कहना भी चाहिए, सुन्नत भी है इंशाअल्लाह कहना, जो हम बात पे आइंदा की बात पर इंशाअल्लाह कहना ये सुन्नत है, तो ये कहें, लेकिन वो काम कर गुजरना है। अगर ये आपने किसी को कहा ना मैंने तो वादा थोड़ी कहा था, इंशाअल्लाह कहा था, ये अवाम है, ये आपके खिलाफ हो जाएगी, इसे समझ में नहीं आएगा। ये तो कहाँ क्या बोलना ये भी समझ में आना चाहिए, तो ये बोलना नहीं चाहिए। मैंने ठीक है मसला अर्ज कर दिया, लेकिन इसका मतलब भी नहीं कि आप अवाम को ये समझाना शुरू कर दें तो बात खराब हो जाएगी, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, बदगुमानियाँ शुरू हो जाएंगी। जैसे कि भाई फुला मौके पर सलाम करो तो जवाब वाजिब, फुला मौके पर सलाम करो तो जवाब वाजिब नहीं। अब ये रट्टा लगा कर ये अवाम बैठेगी ना, तो अगर आप जवाब नहीं दें कोई बोलेगा तो वाजिब थोड़ी है, जरूर थोड़ी है, न मदनी चैनल पर सुना था, तो ये मसला खराब होगा। तो इसलिए तो जवाब देना कोई गुनाह तो नहीं है ना यार, सवाब तो है ना, तो सवाब का काम कोई वाजिब है, तर्क तो नहीं है ना यार कि इसको तर्क कर दिया जाए, ले लिया जाए। अगर वाजिब नहीं है तब भी अगर किसी ने जवाब दे दिया किसी के सलाम का, जबकि जवाब देना मना ना हो, वो फिर अलग सूरत बनेगी, तो दे दे, सवाब मिलेगा। और जब वाजिब था उस वक्त जवाब दिया तो ज्यादा सवाब मिलेगा वाजिब पर अमल करने का। तो ये अब इसके लिए बहुत सारा मुताला और इल्म हो, और इस तरह मतलब इल्म की महफिलें, अहले इल्म की सोबतें, अब ये तो तकरीबन नायाब नहीं तो कमयाब तो हैं, है मुश्किलात, जहन भी इतना नहीं है, सुनते हैं तो याद भी नहीं रहता, सर के ऊपर से गुजर जाता है। तो लेकिन कोशिश करती रहना चाहिए। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है कि बाज़ औक़ात नाबीना अफराद जब होटल पर खाना खाने जाते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलता और कोई उनकी पेमेंट करके चला जाता है, तो ये होटल वाले से कह सकते हैं कि हमारे पैसे किसी से नहीं लिया करो जब तक हम खुद ना कहें। अच्छा कहना कि नाबीना का जेब भरी हुई है तो किसी की और भी पेमेंट कर दिया करे तो अच्छा, इसको भी सवाब कमाने के लिए रुकावट तो कोई नहीं है ना। नाबीना इसका मतलब थोड़ी मांग के खाए। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सहाबा किराम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ाहिरी आंखें बंद थी, दिल की आंखें रोशन होना और बात है। सहाबी है, नबी थे। और इसी तरह और बुजुर्ग बहार शरीयत जिन्होंने लिखी, सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी उम्र में ज़ाहिरी आंखें रोशन न रही। इस तरह बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन भी मिल जाएंगे कि जिनकी ज़ाहिरी आंखें रोशन नहीं थी। हाफिज तो आमतौर पर नाबीना को लोग हाफिज तो बोलते ही हैं, हाफिज जी। तो नाबीना जो होता है ना, उसका हफ्जा आम लोगों के मुकाबले में मजबूत माना जाता है कि बदनिगाही से बचा रहता है, ये इसके इख्तियार में नहीं होता। तो बदनिगाही से भी हाफिजा कमजोर होता है। आजकल गुनाह भरे चैनल, रौनक बाजार की, इनमें बदनिगाही का सामान बहुत होता है, तो ये हाफिजे भी शायद इस वजह से भी डैमेज होते रहते होंगे वगैरह। तो बिल्कुल नाबीना अगर कोई खुददार टाइप के हैं, इस तरह जज्बा है और जेब भी भरी हुई है, हर नाबीना भीख नहीं मांगता, नाबीना धंधे करते हैं, कारोबार करते हैं, बाहर नाबीने पार्टियां होती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी पार्टी होते हैं नाबीने। तो इस तरह मेहनत मजदूरी करते हैं, चीज़ें बेचते देखे होंगे आपने। इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, बात तो वाकई चीज़ें बेचते हैं, बाद माचिस दिखाकर 100 रुपये का खींच लेंगे, उससे खुला नहीं है मेरे पास, तो अगला हाफिज ही रख लो, दुआ करना। तो ये नहीं करना, ये भी भीख ही की सूरत है। जान के होते इसको बोलना, झूठ हो तो और अलग के चेंज है, फिर भी कहना कि नहीं है वगैरह। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो वो नाबीना वाकई बहुत अच्छा नाबीना है। अल्लाह इसका दिल रोशन कर दे। जो होटल वाले को कहते किसी के पैसे मुझे पूछे बगैर मत लेना, मैं पेमेंट करूँगा, बड़ी प्यारी बात है, खुददारी की बात है, होना भी सही चाहिए। अगर है तो हम किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। तुम ही से मांगे तुम ही दोगे,
तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। यूँ तो माशरे में हर खुददारी तो बहुत ही अनमोल है, लेकिन एक उस्ताद, टीचर और एक जिसको अहम मनसब मिलता है, जिनके तहत कुछ लोग होते हैं, जैसे तो इनके लिए खुददारी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। बाज़ औक़ात जो टीचर्स होते हैं ये अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ इस तरह का मामला शुरू कर देते हैं और उसके फिर कुछ ख़राबियाँ भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं। या मतलब उस्ताद की एक अपनी सैलरी होती है, टीचर की एक अपनी सैलरी होती है, स्टूडेंट में एक से एक बाज़ औक़ात मालदार भी होते हैं। तो फिर ये कि झुकाव, बाज़ औक़ात मालदार की तरफ झुकाव का होना, ये भी इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। या कोई अहले मनसब, साहिब मनसब की औलाद होती है तो उसका एक असर रसूख, तो एक उस्ताद के ऊपर किसी तालिब इल्म के माल का, नसब का या किसी भी उसके आगे पीछे का जो असर होता है, वो एक उस्ताद तो पढ़ने ना पढ़ने के ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? हाँ, ये खुददारी तो ज़रा सबको होनी चाहिए। मैंने सीधी खुतबे मदीना जैसा नहीं देखा यार। मैंने एक बार वो बुजुर्ग तशरीफ लाए हज़रत किबला मोहम्मद अली मुराद शामी रहमतुल्लाह अलैह, सईदी खुतबे मदीना का जनाज़ा इन्हीं ने पढ़ाया था। तो हज़रत के बहुत चहीते थे। तो मैं सईदी खुतबे मदीना की बारगाह में हाजिर था, ये तशरीफ ले आए, हाजिर हुए मेरे मुर्शिद के पास। तो मुझे कुछ फरमा के फलां चीज़ इनके लिए ले आओ। मैं तो मेरी सादत भाग के ले आया। ये भाग के ये मुहावरा है, रनिंग नहीं है, ले मैं ले आया। तो मैंने पेश कर दिया। तो सीधी खुतबे मदीना ने फरमाया कि हाँ पैसे ले लो। मैंने हज़रत ले लो, शराफत से मैंने ले लिए। तो ये इसको बोलते खुददारी। मेहमान मेरा, तू पैसा काय को देगा? तू कौन होता है? ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ले लो। मैंने तो जरा जोर से बोला, भाई इन्होंने थोड़ा यूँ बोला, मतलब सीरियस होके ले लो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी मैं दोबारा इनकार करूँ, चुपचाप ले लिया मैंने। तो अब ऐसे लोग कहाँ हैं यार? हम लोग तो खाली बहाने ढूंढते होते हैं, जान जान के नाना करेंगे और जज़ाकल्लाह के कर सरका लेते हैं। खैर कोई नजराना कबूल करे इसमें हरज नहीं है। यानी बताया कि वाकया मैंने आपको बताया कि सईदी खुतबे मदीना का, चलो जिक्र खैर हो गया, अल्लाह के नेक बंदे का। जो आपने जिक्र फरमाया कि फौरन में लेकर आ गया, तो इसका मतलब आ नहीं गया बेटा ना, शायद भागा नहीं मैं वैसे। अब यहाँ से भाग कर कहाँ जाऊँगा यार? एक तो मदीना आस्ताना, सईदी खुतबे मदीना का वो आस्ताना जो है वो अस्तफा मंजिल में था और वो अब तो मस्जिद नबी शरीफ में आ गया। यानी फौरन आप ले आए, इसका मतलब है वो मस्जिद नबी शरीफ यानी हुजूर के आस्ताने के नीचे कुछ दुकानें हुआ करती होंगी और बहुत करीब ही आप फौरन वो सामान लेकर आ गए और पेश कर दिया आपने। तो अस्तफा मंजिल का कुछ जिक्र हो जाए, वो कहाँ थी? अब कितने मिनट में लाया मुझे याद नहीं है। वो 80 की बात है सरकार। आप भी पता नहीं क्या पहनते थे, चड्डियाँ पहनते थे, बोल नहीं सकता मैं आपको, इतने से होंगे आप भी। तादाद फिदा भी नहीं हुई होगी। दाऊद इस्लामी भी बनी नहीं थी उस वक्त। 80 कितने साल हो गए? 44 साल हो गए ना, है ना? तो अब ये पता नहीं ये भी पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे। अब वो हाँ नहीं हुए होंगे। तो मतलब पुरानी बात कर रहा हूँ। तो अब मैं ले आया। अब वो इस्तफा मंजिल में वो आस्ताना था, ये मुझे पता नहीं है। इस्तफा मंजिल का नाम सुना हुआ है मैंने। उसी में आस्ताना शरीफ सईदी खुतबे मदीना का था। अतराफ में दुकानें और बाजार और सब कुछ था। वहाँ उस वक्त तस्वुर नहीं था कि ये मस्जिद नबी शरीफ का हिस्सा आगे चल के बनना है क्या। लेकिन उन दिनों कोई खुदाइयाँ हो रही थी और तोसी का सुनते थे दुकानें और लेकर और, लेकिन आस्ताना शरीफ जो था उसको टच नहीं किया था। तो अब मस्जिद नबी शरीफ में वो आस्ताने की जगह भी मुझे किसी ने बताई थी कि यहाँ सईदी खुतबे मदीना का आस्ताना था और मस्जिद नबी के अंदर ही है। ये भी नसीब दर नसीब की बात है कि किसी का मकान मस्जिद और वो मस्जिद नबी में कबूल कर लिया जाए तो शहादत दर शहादत है। अल्हम्दुलिल्लाह। बात वो उस्ताद और शागिर्द की थी कि वो असरात जो शागिर्द अगर बड़ा मतलब इसकी वो फैमिली बैकग्राउंड या कुछ ऐसा मालदारी है तो उस्ताद उसका असर कबूल करके दूसरे
जो स्टूडेंट या तलबा होते हैं इनमें फ़र्क ऐसा ना करे, इस ताल्लुक़ से मैं अर्ज़ करना चाह रहा था। माशाअल्लाह चूँकि जामिअतुल मदीना है, मदरसतुल मदीना, और आज तो माशाअल्लाह दारुल मदीना का भी सैकड़ों इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, तो इस तरह और टीचर्स हमें देखते हैं, सुनते हैं, उस असातिज़ा देखते सुनते हैं, तो इस हवाले से क्योंकि ये एक मसाइल आते हैं हमारे माशरती तौर पर। बहुत ऐसा तो इतना है कि यार, जैसे कि हम लोग जानते होते कि यार ये कैसा है, तो वो जो इनको बुलाकर आगे अपने बराबर गाँव तकिए पर बिठाता है, उसको नहीं पता होगा यार, बिठाते मान देते हैं, इज्जत देते हैं उसको। हालांकि एक कौड़ी का भी वो आदमी मतलब मान के लायक नहीं होता, उनको मिलता है मान। और जो नेक आदमी, नमाजी आदमी, गरीब सादा लिबास में, आँख उठाकर भी नहीं देखी जाती। तरह तरह के इस दुनिया में ऐसे वाक़यात हैं कि मुझे एक वाक़या पुराना याद आ रहा है, बहुत साल पहले की बात है। मैं किसी के यहाँ था, गया था मिलने के लिए, या शायद एक शख्सियत थी, मजहबी शख्सियत थी। तो एक और शख्सियत जो दुनियावी एतबार से बहुत बड़ी शख्सियत थी, वो मुझे ढूंढती आ गई मिलने के लिए। तो इत्तेफाक है, उसको पता चला कि हमारे शहर में आया हुआ है, या कोई उसको काम था मुझसे, वो आ गई शख्सियत ऐसे कि प्रोटोकॉल के साथ, वो दमदमाटे वाली शख्सियत थी, बड़ी शख्सियत। अब जो शख्सियत उस जगह आई ना, तो वो साहब जो थे वो बेचारे माइनस बेचारे, वो समझे कि मेरे पास आई भी है, हालांकि उनको जानते भी हों, ये जरूरी नहीं है। उनकी आओ भगत में और ऐसे मसरूफ है यार, मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं देखता रह गया कि मैंने कहा मैं कैसे बोलूँ कि यार ये आपके पास थोड़ी आए, मेरे हवाले कर दो इसको। वो भी बहुत ऊंची चीज थी जो भी आई थी। बड़े लोग अपने को लगता है ये होते नहीं है, बहुत सियाने होते हैं। बड़ी सीट पर जाना या अरबों रुपए जमा कर लेना, वो अरबों रुपए के हिसाब से नहीं थी वो शख्सियत, वो किसी गवर्नमेंट की पोस्ट के हिसाब से थी। तो ये बहुत ऊंची चीज होते हैं, सब समझते होते हैं। हम बोलेंगे नहीं, हमारी फैसिलिटिंग कर लेंगे, वो समझ लेंगे। एक मुबालगा समझो या जो भी, बहुत बहुत चालाक होते हैं। तो खैर वो आखिरकार वो जो भी करना था उसे मुझसे ही उसने किया, कराया, और जो भी चले गए। तो ये होता है कि वो जो फरमा रहे ना, कोई आदमी मतलब है कि अपनी औकात भूल कर उसके पीछे लग जाता है, दुनियादार के पीछे। कोई मतलब आ गया, कोई औलाद है किसी मालदार की, उसकी मतलब मश्क का पॉलिसी, या उसके मालदार आ गया, या कोई बिगड़ा हुआ बंदा आ गया, या कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा आदमी आ गया जो मतलब चाहे वो रिश्वत से ही उसका धंधा चल रहा हो, उसको मान जरूर देना है। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ फितने का खौफ हो ना, या मान नहीं देंगे तो शर पहुंचेगा इससे, या इसलिए मान दिया 100% का जहन है कि मैं मान दूंगा तो यार ये थोड़ा दीन के करीब आ जाएगा, शरीयत पर अमल करेगा। और इसके मान देने में ऐसे फितने का खौफ नहीं है जिससे नुकसान बड़ा हो रहा हो। ये सारे पहलू देख कर कोई मान देगा तो गुंजाइश भी निकलेगी, है ना। हमारी जो भी बातें होती है ना, इसमें कहीं ना कहीं बात पहलू निकल रहे होते हैं, सूरतें बन रही होती हैं। तो ये मैं समझा रहा हूँ कि हमारा ये इतना बड़ा जहन नहीं होता यार। वो मतलब क्या क्या कर रहे होते। एक जगह मैं था तो एक शख्स को जानता, वो कातिल था, कहीं बाहर की बात कर रहा हूँ, और वांटेड था। लेकिन अब महफिल में तो हर तरह के लोग आ जाते हैं, मुझे पता था। एक शख्सियत जो अगलब गुमान उसको जानती होगी, अब मैं सोफे पे बैठा हुआ था, बहुत साहब भी उसको आइए करके सोफे पे बुला रहे थे यार, मगर वो भी शायद गैरतमंद था कि यार मैं इस काबिल का नहीं आया सोफे पे। लेकिन बुलाने वाले ने मुझ पर तो अपना जो भी इम्प्रेशन छोड़ना था छोड़ा ना। ये भी हो रहा है, जैसे अब ये कातिल है तो अपने को क्या दे देगा यार, इसको तो मतलब अगर हिम्मत है तो अमर में मारूफ करे, जो भी करना है मतलब वो नेकी की दावत देना, कि इसको मान दे कि वो समझे कि यार अपना रोब है, बड़े बड़े अपने से मतलब डरते हैं और अपना मान करते हैं, इज्जत करते हैं। इज्जत का है कि यार इससे बड़ी जिल्लत क्या यार कोई किसी को कत्ल कर दे नाहक। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। तो यूँ अब ज़रा उम्र है, तरह तरह की महफिलों में आना जाना हुआ है, देखा भाला है कुछ ना कुछ, वो अच्छे लोग बुरे लोग हर तरह के लोग होते। इस तरह तुम्हारा असातिज़ा हो, अइम्मा किराम हो,
खुतबा हों, मशाइख हों, उलमा हों, सब मतलब मोहतात रहे। अब किसी ने बुला भी लिया किसी को आगे, तो हमें मतलब उसने जन का पहलू भी ढूंढना चाहिए कि शायद इसकी इस्लाह के लिए बुलाया होगा, कोई ख़ास मकसद होगा, या इससे मतलब कुछ खौफ होगा कि ये अगर इसको इस तरह मान नहीं देगा तो इसका बच्चा उठा लेगा या इसको मतलब कोई नुकसान पहुंचा देगा। शर से बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया। हम यूँ सोचना शुरू कर दें तो शायद बचत हो जाएगी हमारी, अगरचे हर सूरत में ऐसा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब हमारे यहाँ बाद लोग सरमायादारों को मान देते हैं, तो यह पहलू निकलता है कि यार इस दावत इस्लामी को चलाना है, यार मान देंगे तो थोड़ा माल मिलेगा। अब क्या करें, हम मालदार को धुतकारेंगे तो होगा, वो भी छीन लेगा, तो हम बेचारे मान ही देंगे और क्या करेंगे। अब इलाके में मस्जिद का मसला है तो जामियातुल मदीना किसी प्लाट का मसला है, अब सामने है वो जैसा भी बंदा है उसकी वजह से ये जामियातुल मदीना बन सकता है। इसका करता है क्या नहीं, यूं बात करेंगे उससे शर के 3 नुक्ते उड़ा देंगे ना, तो फिर काम निकलवाएंगे आप। दोबारा लिए क्या, और मैं क्या अर्ज करूं, मतलब मौका माल के हिसाब से बहरा लेके जरर को तरजीह होती है, उससे बचना होता है नफा के मुकाबले में। लेकिन बाद नफे ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारे जरर को दूर कर देते हैं। एक इलाके में जामियातुल मदीना खुल जाए, बहुत सारे शर दूर कर देगा और बहुत से जाहिलों को आलिम बनाकर माशरे में रहनुमाई के लिए पेश कर देगा। दोबारा उलमाए किराम की रहनुमाई से आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वैसे भी जैसे भी जो जिसके अंदर शर है, बुराइयां हैं, और उसकी हमारे यहाँ बाज़ औक़ात नरमी करनी होती है, एहतराम भी किया जाता है ज़रूरतन, या तो शर से बचने के लिए या उससे कसीर नफ़ा या उसकी इस्लाह के लिए, या ये कि हमारे एहतराम करने से उसकी शान में कोई फ़र्क आता ही नहीं है, करो या ना करो, ना करो तो ख़तरा होता है। तो जो भी सूरतें बनती हों तो उसमें यह कि हर मामले में मुदानत से बचना होता है। जहाँ जहाँ मुमकिन हो वहाँ मुदानत से बचना होगा कि यानी उसको यूँ नहीं लगे कि जो मैं बुराई कर रहा हूँ ना वो मसला नहीं है, जब तो ये मौलाना मेरा इतना एहतराम करते हैं, तो मसला होता तो मुझे समझाते ना, बताते ना। अच्छा, बाद ऐसे होते हैं कि इनको समझाओ तो खुश होते हैं। ये भी आपको बता दूं, एक बहुत पहले की बात है, जब ये फैज़ान मदीना ज़ेर तामीर थी, एक साहब को कोई ले आए इस्लामी भाई, सोने से लदे हुए थे, जिसको बोलते हैं ना सोना सोना सोना, बहुत बड़ा पार्टा थे, पार्टी का पार्टा। तो अब आए मिले जुले, मैं सोने पर इसको समझाना शुरू कर दिया, मर्द का सोना। और ये मुझे याद पड़ता है कि वो मुतासिर हुआ, देखा मेरे को कोई नहीं बोलता, इसने बोला यार ये आदमी सही है, क्या मेरा लिहाज नहीं किया इसने, मुझे हक बात बता दी। ये क्वालिटीज भी होती है, ये किसी ऐसे शख्स को कि जिसके थाना जिसके पीछे हाथ बांध के फिरता हो, मिसाल के तौर पर ऐसे वर्षों के पीछे होते हैं थाने, समझे। तो यार इसने मेरे को, ये छोटा सा आदमी है, इसके कोई अप्रोच नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, मैं इससे मिलने आया तो ये तो शुरू हो गया। इसका धंधा यही है कि लोगों को नेक बनाए, शरीयत पर चला है। ये अब मैं अपने तौर पर इसका इजाफा कर रहा हूँ कि इस तरह की भी क्वालिटी पाई जाती है। हर शख्स ऐसा मतलब नहीं होता कि अगर गुनाह करता है या बुराइयां करता है तो वो नेक लोगों का या नेकी की बात बताने वालों का दुश्मन बन जाता है, कोई उसको समझाए तो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छे लोग भी पड़े होते हैं। एक तो ये होता है कि माशरती रवादारी होती है, और ज़ाहिर बात है किसी से लड़ तो सकते नहीं है, अखलाक मोहब्बत से नेकी की दावत से बंदा करीब आता है। फिर ज़्यादातर मामलात में ऐसा होता है कि पहले दिन, आप तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप हमारी तरबियत फरमाते रहते हैं, पहले दिन उसको कह दिया दाढ़ी रखो तो बाज़ लोग भाग जाते हैं। तो चूँकि नेकी की दावत का उसूल भी ये है कि आप समझते हैं कि अमल कर लेगा तो, या कर लेगा तो वाजिब, या फिर भी मुस्तहब रहेगा मुतलकन, तो चूँकि वो मौक़े बाज़ औक़ात मुतहक्किक नहीं हुए होते, तो इसलिए मुबल्लिगीन बराह रास्त उसके गुनाह पर तंबीह इसलिए भी नहीं कर रहे होते। फिर हर एक का बताने वाला का भी कद होना चाहिए।
मौका महल। अब जो आदमी आया था ना मेरे, जिसके मैंने किस्सा बताया, उसके पास बहुत बड़ी मस्जिद भी थी, यूं मस्जिद भी उसने बनाई थी। तो देखिए इस तरह का। तो अब फिर कद आया था वो मेरे पास, मैं इसके बाद नहीं गया था। तो कोई बात थी जो आया था ये, या लाया गया था तो किसी ने मुतासिर करके मेरा रुख करवाया था उसको। अब आप रास्ते में मिल गए और किसी की सोने की चेन उतारोगे तो ये आपका इमामा खुदा न खासा उतार देगा, लड़ाई हो जाएगी। तो हर एक को मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि आप दाढ़ी का भी मत बोला करो यार, या हमें सौंप दो। रखते नहीं है लोग, हाँ बोल भी देंगे, आइंदा आपकी गली से गुजरेंगे नहीं। आप नमाज का बोलो, नमाज से कोई झगड़ा नहीं करेगा। और ये पूछो मत कि नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, कि फिर बोल देगा मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये गुनाह का इज़हार गुनाह है। एक तो गुनाह कर रहा है, दूसरा इज़हार कर देगा। तो आप माशाअल्लाह कौन सी मस्जिद में फजर पढ़ते हैं, वहाँ ये दर्स होता है, कौन जोहर फलां पढ़ लेना तो मैं दर्स देता हूँ, आइएगा ना। यूँ करके मतलब ये कि वो खुद बोल पड़े कि दुआ करो मैं नमाजी बन जाऊँ, वो एक अलग सूरत है कि इसमें आपका कसूर ना रहा, पूछा ना जाए। इस तरह दाढ़ी का बोलेंगे या बोलेंगे कि वो आप फिल्में नहीं देखो, ड्रामे नहीं देखो, आप के मोबाइल में ट्यून जो है म्यूजिकल है ये नहीं होनी चाहिए वगैरह। तो मौका महल देख रहा, नए आदमी को बोलोगे ना तो समझ में आएगा नहीं। पहले जब हम टीवी अपना मदनी चैनल ली था तो हर टीवी में गुनाही जाहिर हो रहे थे। जब हम के बात करते थे ना तो लोग ये जवाब देते थे मुझे अच्छी तरह से, फुला मुफ्ती के घर पे है, फुला मौलाना के घर पे है, फुला खतीब साहब के घर पे, ये जवाब हमको देते थे इस तरह। अब क्या क्या जवाब दें इसको? अब मुफ्ती साहब के पास हो या ना हो अलग बात है, लेकिन यूं बोलते थे लोग बड़े बड़ों के घरों में, हमको समझाते हो। तो खैर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने पास भी आ गया। और जब पहली बार मुझे निगरान शुरा ने बोला ना कि हम यार, तो मैं यही समझा था कि गुनाहों के बगैर इसका चलाना पॉसिबल नहीं है। तो फुला फुला गुनाह कंपलसरी होंगे यार, अपने कैसे चलाएंगे? बोला ऐसा नहीं है, हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं। है हाँ, चलो बनाते हैं मदनी चैनल की तरकीब। तो यूं ही मदनी चैनल की हमारी तरकीब बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हो गया कि आज इसने सुन्नियों का नाम रोशन कर दिया है। मदनी चैनल ने, आशिकान रसूल का फख्र है इस पर कि हमारा मदनी चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कानूनी, लेकिन ये कि हम ने के वो नहीं है कि हम गुनाहों पर ही बात करें या हम पर कोई मतलब गन रखी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा वतन अजीज इस्लामी मुल्क है, अल्लाह के रहमत से हम चल रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से। इन्होंने कभी नहीं बोला कि फुला गुनाह करना पड़ेगा तुमको। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला जारी है और आज कराची सिटी के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट, यूसीज़ और टाउन्स के इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में हाजिर हैं। और इसके साथ साथ दारुल मदीना और फ़ैज़ान इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम जो है उसके इस्लामी भाई और अमले का 3 दिन का तरबीती इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और उसके इस्लामी भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सबको वेलकम, खुश आमदीद। या हुसैन इब्ने अली, या हुसैन इब्ने अली, या शहे करबला, या शहे करबला। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों के इस्लाम की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे पापा जानी, मैंने 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर आपकी बहू उम्मे हुसैन को निसाले सवाब किया। नवाज़ मुस्तफ़ा या शहीद करबला, तुम हो आले मुस्तफ़ा या शहीद करबला। माशाअल्लाह,
प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सब बच्चों को बामुल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी और ख़ानदान वालों समेत हज और मजीदे की हाज़िरी वो भी बार बार नसीब करे। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आपने बुज़ुर्गों के मदनी काफ़िले का जो बयान फरमाया था, तो हमारे पास जो अब तक कारकर्दगी आई, कराची सिटी से भी सफ़र हुए, गुजरात, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल डिवीज़न, लाहौर सिटी, मुल्तान और डीजी खान। तो यहाँ तक के तो और हैदराबाद वाले भी यहाँ आए हुए थे बुज़ुर्ग यहाँ पर। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह भी ये सिलसिला चल रहा है और आज कारकर्दगी आई है कुछ। ये तारीखी एक नया चैप्टर है तारीख का, अल्हम्दुलिल्लाह बाब है नया। इतने बुजुर्गों ने सफ़र किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह कर हर महीने कुछ ना कुछ सफ़र का जो मैंने अंदाज अर्ज किया था उसके मुताबिक होता रहे ना, तो इनमें बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। इनके पास टाइम भी होता है आमतौर पर। ये महीने फिर आपको मिलेंगे से कि हम महीने में 2 बार सफ़र करेंगे, कोई बोलेगा मैं हर हफ्ते सफ़र करूँगा, इंशाअल्लाह निकलेंगे। तो जितना ये सफ़र करेंगे इनमें मज़ीद बेहतरियाँ आएंगी। बस वही है कि जो भी बुज़ुर्ग जाएँ, मेरा ये मदनी फूल जेब में रखना है नहीं सर पे, गुस्सा नहीं करना। चाहे कितना ही गुस्सा आ जाए, गुस्सा करोगे पूरा काफिला सबूताज हो जाएगा। गुस्सा करना नहीं है, चाहे किसी ने कितना ही गुस्सा दिलाया, आपको बाज़ वक़्त चेक करने के लिए हो सकता है वो गुस्सा दिलाए, समझे, तो आपने गुस्सा नहीं करना बस। बाकी खैर इंशाअल्लाह बाकी मुबल्लिगीन संभाल लेंगे, क्योंकि आपके साथ एक जवान तो रहेंगे ना साथ में सिखाने से वगैरह के लिए। अब वो तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि 19-20 आपस में हो जाए तो कुछ थकान में भी चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो शफकत, आप शफकत करेंगे, वो इंशाल्लाह तरबियत करेंगे, तो अल्लाह करेगा तो सब चलते रहेंगे। कुछ बुजुर्ग ऐसे होंगे जो माशाअल्लाह अच्छे मुबल्लिग भी होंगे, वो भी तरबियत एक दूसरे की कर रहे होंगे। सब मिलजुल के करना है, बस ये घेरे से बांध लेना है, गुस्सा नहीं करना। मदनी काफिला कामयाब है आपका अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी मुज़ाकरे में भी शिरकत की और एक मदनी बहार लाहौर सिटी से हमें ये मिली है कि एक बुजुर्ग घर वालों से नाराज थे, वो भी मदनी काफिले के सफ़र में थे, मदनी मुज़ाकरा देखा और काफिले से वापसी जाकर घर वालों और बच्चों से सुलह कर ली। माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये तो एक मदनी बहार पहुंची है ना अब तक, इंशाअल्लाह आती रहेंगी मदनी बहार। मदनी काफिले का साइड इफेक्ट क्या है? नेकियां नेकियां इंशाअल्लाह। जवाब दीजिए। लब्बैक। अरकान इस्लाम कितने हैं? सिर्फ फिगर देना है, मसलन 10, 15, 20, जो भी आपको जवाब देना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5। जवाब दुरुस्त है। अच्छी नियत पेश करें। इंशाअल्लाह पाबंदी से मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करता रहूँगा। अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जो तोहफ़ा दे रहे हैं वो इल्म दीन का बहुत बड़ा ख़जाना है। इंशाअल्लाह USB की शक्ल में इसमें मुहर्रम शरीफ के मदनी मुज़ाकरे भी हैं, मुहर्रम शरीफ की मनकबतें भी हैं और इसके अंदर बहुत कुछ है। 8 GB USB है और मकतबतुल मदीना से 450 रुपये हदिये पर तलब की जा सकती है। इसी तरह दावत इस्लामी का एक शोबा है मदनी चैनल आम करो, ये बाहर मौजूद है। यहाँ पर जितने इस्लाम में मौजूद हैं, मेमोरी कार्ड के अंदर, USB के अंदर नातें, तिलावत, बयान, मदनी मुज़ाकरे, जो कुछ हासिल करना चाहें, बाहर इसका बस्ता लगा हुआ है, वहाँ से ये अपने मोबाइल में डाउनलोड करवा सकते हैं। माशाअल्लाह। जवाब दीजिए। रबीउल अव्वल शरीफ इस्लामी साल का कितनावां महीना है? बस वो लफ्ज बोलना है, ये इतनावां, मसलन 12वां अगर बनता आपके नजदीक तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3
जवाब दुरुस्त है। अच्छी नीयत ये है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अगले साल मुहर्रमुल हराम में 12 माह की इंशाअल्लाह नीयत है। अल्लाह आपको जिंदा सलामत रखे, इस्तिकामत दे, तंदुरुस्ती रहे। वो एक मुहावरा सुनो, आज का काम कल पर मत डालो, कल दूसरा काम होगा। 12 महीने तो बहुत है यार, 12 सांस मुश्किल है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 26 दिन का जो ना काफिला कोर्स कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला नीयत है। दुआ फरमा दें हुज़ूर, मेरे वालिदैन के लिए भी और बच्चों के लिए भी दुआ फरमा दें। वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करें। आमीन आमीन। आपको भी अल्लाह बख्शे, वालिदैन को भी बख्शे, मुझे भी बख्शे। इंशाल्लाह इनको तोहफे में प्यारे नबी की प्यारी आल और साथ में माहनामा फैज़ान मदीना, ये दोनों तोहफे में दे रहे हैं। माशाअल्लाह। शब कद्र का जिक्र कुरान करीम की कौन सी मशहूर सूरत में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कदर। जवाब दुरुस्त है। इंशाल्लाह इनको दुरुस्त जवाब देने पर मकतबतुल मदीना का रिसाला प्यारे नबी की प्यारी आल और माहनामा फैज़ान मदीना पेश किया जाए। माशाअल्लाह। अच्छा जल्दी जल्दी शेर मुकम्मल कर दीजिए। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। और कुछ आगे पीछे नहीं बोलना है, खाली ये मिसरा बोल देना है कि जो इसका बनता है। मोहम्मद अरसलान अत्तारी। अच्छी नीयत इंशाअल्लाह हर माह मदनी काफिले में 3 दिन के मदनी काफिले में सफ़र करूंगा इंशाअल्लाह। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। प्यारे नबी की प्यारी आल और माहनामा फैज़ान मदीना तोहफे में पेश किया जा रहा है। सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम ने किश्ती बनाई? शिप। उनका मुबारक नाम लेना है, आगे पीछे जुमले नहीं बोलते कि फलान ने। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहले। जवाब दुरुस्त है। इन्हें भी माशाअल्लाह प्यारे नबी की प्यारी आल और माहनामा फैज़ान मदीना। मक्का मुकर्रमा में, मक्का मुकर्रमा में वाक़े किन 2 पहाड़ियों को अल्लाह करीम ने अपनी निशानियां बताया? जो कुछ है हमने पाया मदनी अब्दुल खालिक अत्तारी, सफ़ा मरवा कोरंगी। सफ़ा मरवा। जवाब दुरुस्त है। इंशाअल्लाह ताला 12 महीने सफ़र का इरादा है, अगर मरकज कबूल कर ले तो। बड़ी बात है। अब कुछ अंदाजा हो रहा है, बहुत पुराने लग रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं वाकई ये बुजुर्गों को मरकज मदनी मरकज कबूल करेगा। जवानों को भी जब मदनी मरकज के अपने मतलब इनके इंटरव्यू लेते हैं इनका कि ये दीन का काम करेगा, कर सकेगा। अब आप बोलो कि ये बीमारी वो बीमारी, फालेज के अटैक वाला बोले मैं 12 माह सफ़र करूँ, माज़अल्लाह, अल्लाह इनको शिफा दे। तो ऐसा आदमी सफ़र की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर नहीं सकता। तो ये चेक करके इधर इनकी इजाज़त पर मौकूफ़ होगा। फिर ये खिलाफ नहीं बोलना, बात शुरू हो जाते हैं। तो ये तो अपना नाअहल होना बाद में साबित करते रहते हैं, था ही नाअहल, जो मुझे इजाज़त नहीं थी, सही किया इन लोगों ने, तो खिलाफ बोल रहे होते हैं। मैं इतनी कोशिश की, इतना समझाया, मुझे इजाज़त नहीं दे रहे, मुझे मदनी काफ़िले में नहीं जाने देते, मुझे 12 महीने का सफ़र नहीं करने देते। मैं तैयार हूँ, मैं वक्फ़ मदीना होना चाहता हूँ, ये मेरे को लिफ्ट नहीं कराते। बहुत सही किया तुमको लिफ्ट नहीं कराया, वरना अंदर जाते 12 माह में तो शायद उसको उलट पुलट करके आ जाते। तो इस तरह के गुस्से वाले लोग भी चलते नहीं है। 12 माह क्या 3 दिन के लिए भी वो नहीं चलते, मसाइल खड़े कर देते हैं। तो अगर मदनी मरकज हाँ बोले लब्बैक, ना बोले लब्बैक, ये आपके दुश्मन तो नहीं है ना, ये आपकी भी भलाई चाहेंगे, दावत इस्लामी की भी बेहतरी चाहेंगे। इनके अपने तजर्बात हैं। बाज़ औक़ात बंदा बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, बाज़ इतना बोलते हैं कि बोल 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 के मौलाना हसन खान की शेर का एक मिसरा याद आ गया, बक बक के हर्जा गोई से खाली न कर दिमाग। यानी कि इतना बोलते कि दिमाग खाली कर देते हैं, तो वो भी नहीं चलते।
وہ کہیں نیکی کی دعوت دینے گئے اور اس کے ایسے گلے پڑے کہ بیچارہ مطلب بار بار گھڑی دیکھ رہا لیکن شروع ہے بھی نہیں. تو یہ حکمت عملیاں ہوتی ہیں. نیکی کی دعوت بھی حکمت عملی سے. کوئی دیکھے نا گھڑی تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ اب یہ جانا ہے, تو اس کو آزاد کر دیا جائے. انشاءاللہ الکریم انہیں بھی پیارے نبی کی پیاری آل اور ماہنامہ فیضان مدینہ یہ دونوں پیش کر رہے ہیں. اللہ اللہ, تو بہت مشکل سوال آ گیا ہے کہ جواب کیسے دیں گے. چلو دیکھتے ہیں دیتے ہیں نہیں. کہ صحابی نبی کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے. اچھا تو پڑھیے, مائک پر آؤ گے تو پتہ چلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابوبکر صدیق ان پر اللہ پاک کی رحمت ہے, جسد کہ ہماری مغفرت ہو. جواب درست نہیں ہے. اصل وہ مائک والوں کو بھی ضروری نہیں کہ جواب کی طرف توجہ. مشکل سوال ہے, بہت مشکل سوال ہے. پہلے سن لیں, مگر سنیں گے تو تصدیق تو جب کریں گے نا خود بھی پتا ہوگا. ہے مشکل سوال, آپ معلوم ہے. چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں, جامعۃ المدینہ فیضان المدینہ. ہر ماہ جامعۃ المدینہ کے شیڈول کے تحت مدنی قافلے میں سفر. ادھر شیڈول بولا اور سادسہ کو بھی انگلش میں لے لو نا یار, یہ قوم سمجھ جائے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جواب درست ہے. تو سادسہ, ثالثہ, ثانیہ, رابعہ عوام نہیں سمجھتی. تو یہ 6th ایئر, ماشاءاللہ, 6 درجے کا 6 ایئر کا طالب علم, مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی کا. ماشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم پیارے نبی کی پیاری آل اور ماہنامہ فیضان مدینہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ اب جو ہے فیصل آباد سے ہم ایک سوال جو ہے وہ شامل کریں. اس کا جواب جو ہے وہ فیصل آباد سے دیا جائے گا. ماشاءاللہ. ہجرت کے وقت سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غار میں قیام فرمایا؟ غار ثور میں. جواب درست ہے. اچھا اب ایک شعر مکمل کرنا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار بے, اور کچھ نہیں بولنا, صرف دوسرا مصرع بولنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. جواب درست ہے. اچھی نیت پیش کر. انشاءاللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ اول تاخیر دیکھنے کی نیت کرتا ہوں. انشاءاللہ الکریم. انہیں ماشاءاللہ پیارے نبی کی پیاری آل اور ماہنامہ فیضان مدینہ تحفتاً پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. ابابیل کا تذکرہ قرآن کریم کی کون سی صورت میں ہے؟ ماشاءاللہ ایک چھوٹے سے بچے نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زیان ارسلان ہے. جواب دیجئے. امتحان میں سے تھوڑی ہوتا ہے. سورۃ الفیل. جواب درست ہے. اس کو بھی کہلوا لو یار. آپ گھر ہو بھائی. سورہ فیل. جواب درست ہے. اب اس کے ابو جو ہے نا مدنی قافلے کی تو فیس کوئی اچھی نیت دے دو نا. آپ کے بچے کا مان رکھ لیا آپ نے, اور آپ کا بھی. اچھی نیت انشاءاللہ یہی ہے کہ آئندہ جو میرا مدنی قافلہ ہے آفس کی طرف سے, اس میں انشاءاللہ شرکت کروں گا. اچھا آفس کی طرف سے. یہ دارالمدینہ شوپ سے وابستہ ہیں. الحمدللہ. ماشاءاللہ. انشاءاللہ دونوں کو انشاءاللہ تحفے پیش کرتے ہیں امیر سنت. انشاءاللہ. مدنی مذاکرے میں شرکت کا بھی تحفہ دے دو ان کو ہفتے میں ایک بار. جی انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت رہتی ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह आता रहता हूँ मैं, तो इंशाल्लाह आज भी है नियत और आइंदा भी इंशाल्लाह रहेगी। इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे दोस्त आपकी खिदमत में अर्ज ये है कि बारहा देखा है कि आप अपनी डायरी से जो है ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो इस डायरी में तो बहुत कुछ खजाना होगा लिखा हुआ, तो क्या ही बेहतर हो, क्या ही अच्छा हो कि कुछ ना कुछ मोती हमें भी जो है मिल जाए इस डायरी से, अगर आप मुनासिब ख्याल फरमाएं। अच्छा, मेरी सवाब दीद पर मुनासिब लगे तो माशाअल्लाह। अरे आपको मुनासिब लगेगा तो सही, नहीं लगना तो चाहिए वैसे मुनासिब, क्योंकि सवाल भी बड़ा मुनासिब सा है। अब इसमें तो ये डायरी के माना होते हैं याददाश्त, याददाश्त जो देखिए बाद में ज़रूरत हो तो ऐसी चीज़ें जो हुई, ऐसी चीज़ें बंदा लिखे तो काम आए। तो मैं दिल बहुत लिखा है इसमें, अब है मतलब तरतीब नहीं है, या बयान फरमाएंगे? हाँ कुछ ना कुछ में है, बहुत है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में तो गत्ते तक पर लिखा हुआ है, नहीं कोई यार प्राइवेट भी बातें होती है इसमें। एक काम करते हैं मदनी चैनल के नाजरीन, हम हर हफ्ते ये सेगमेंट रख लेते हैं अमीर सुन्नत की डायरी से, और हर मदनी मुज़ाकरे में चाहे वो हफ्तावार हो या रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाअल्लाह जब भी मदनी मुज़ाकरा होगा, अल्लाह ने चाहा तो अमीर सुन्नत की डायरी से मदनी फूल का पूरा सेगमेंट हो जाएगा। आप बस हर मदनी मुज़ाकरे में शिरकत रखें कि आज देखें डायरी से क्या बयान होता है। तो आज से शुरू। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर बीमारी की असल बद हजमी है और हर इलाज की असल भूख और कम खुराक है। हवाला मिनहाजुल आबिदीन मुतरजम, सफ़ा 140 मकतबतुल मदीना। इसमें हमको मतलब ये कि ये समझा गया कि हर बीमारी की असल यानी बुनियाद जो है बदहजमी है, हर इलाज की असल भूख और कम खुराक है। तो अभी हदीस की शरह तो अपने उससे अटकल से नहीं कर सकते। जनरली ये कि ज़्यादा खाने से सारी बीमारियां तो होती हैं और भूखे रहने से बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। रमज़ान शरीफ में हम भूख के भी तो फ़वाइद उठाते ही हैं, बल्कि साइंसदानों ने खुद तहकीक करी है कि साल में इतने अरसे तक इतने दिन जो पूरा दिन भूखा रहे ना, कैंसर उसको नहीं हो सकेगा, उसकी काफ़ी हद तक कैंसर से उसको प्रोटेक्शन हासिल होगा। ये रोज़ों को माना है साइंसदानों ने। तो यूँ मतलब है कि इसके फ़वाइद तो हैं भूख के। और तहकीक में ये पढ़ा था कि कुछ चूहे, मतलब चूहे के दो ग्रुप थे, एक चूहों को तो कुल्ली इख्तियार दिया तो वो खाते पीते रहे और जल्दी सिमट गए, मर गए। कुछ को लिमिटेड देते रहे खाने का, तो वो जिंदा तंदुरुस्त और देर तक वो रहे। मतलब साइंसदानों ने जो तहकीक करते ना इस तरह। तो कम खाना तो है कि शायद 80-90% बीमारियां पेट के जरिए होती है, खा कर ही मतलब यानी कि मसाइल बढ़ रहे। अल्लाह पाक हम सबको कम खाने की शहादत बख्शे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दिन में एक बार खाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है ना अमल करना। लेकिन ये कि अच्छा फिर इसमें भी कि भूख के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा ग़िज़ा, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा। तो अगर इस पर कोई अमल हो जाए ना, ये आखिरी में जो मैंने अर्ज किया, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर की जरूरत ना पड़े हमको, डॉक्टर को और धंधा ढूंढ लेंगे हम अगर अमल करने वाले बनेंगे। अल्लाह खैर करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कहा जाता है ना कि दिन में मौत को 20 दफा याद करना चाहिए, तो ये सवाल जिन्होंने मुझसे करवाना चाहा, वो कहते हैं कि किस तरह याद करना है, कोई सबक है या किस तरीके से हमें दिन में याद करना है मौत को। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शहीदों के साथ किसी और को भी उठाया जाएगा? इरशाद फरमाया, हाँ, उसे जो दिन रात में 20 मरतबा यानी 20 टाइम्स
मौत को याद करें। हवाला कुतुल कुलूब जिल्द 2 सफ़ा 43। इस फजीलत की वजह यह है कि मौत को याद इस धोखेबाज दुनिया से दूर करके आखिरत की तैयारी का मुतालबा करती है, जबकि मौत को याद ना करना दुनियावी ख्वाहिशात में मशगूल कर देता है। हवाला इह्या उल उलूम उर्दू जिल्द 5 सफ़ा नंबर 477। अच्छा, ये तो इसके समझोगे एक खुलासा हुआ फवाइद हुए। अब ये कि मौत को याद किस तरह करें, तो अगर तस्बीह के दाने लेकर मौत मौत मौत, यहाँ तो इसकी कोई तशरीह या शरह किसी ने लिखी हो तो मुझे पता नहीं है। तो दिल में ये ना याद आता है ना, मौत, मुझे एक दिन मरना पड़ेगा, है ना, ये भी मौत ही की तो याद हुई ना। तो इस तरह कि अब लफ्ज़ 20 लिखा हुआ है, लेकिन अटकल से हदीस की शरह नहीं की जाती, तो यूँ बार बार मौत याद आती रहे। जैसे कि हज़रत सैयदुना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूरी रहमतुल्लाह अलैह ये कमरे में तशरीफ़ फरमा होते थे और किसी को इजाज़त अंदर दाखिले की नहीं देते थे। तो बाज़ों को तशवीश हुई, पता नहीं अंदर क्या ख़जाना इन्होंने रखा हुआ है, किसी को आने नहीं देते, इजाज़त नहीं देते अपने ख़ास कमरे में, तो प्राइवेट रूम जिसको बोल सकते हैं हम। तो किसी ने इनके वालिद साहब को कहा कि इस कुछ समझ नहीं आ रही, आप ज़रा देखें तो सही आपके बेटे को अंदर है क्या, आपको ये मना नहीं कर सकेंगे। यूँ वालिद साहब ने मतलब वो तरकीब बनाई कि मैं तुम्हारे कमरे में आना चाहता हूँ, शौक से तशरीफ ले गए। तो वहाँ क्या दरो दीवार पर अल मौत अल मौत अल मौत लिखा हुआ था। तो और बोर कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आई जिसको मतलब जिसमें कोई तशवीश की बात हो। तो इस पर यानी कि वालिद साहब अपने बेटे से खुश हुए, मुतासिर हुए, ये मौत को याद करने के लिए जहाँ नजर पड़े अल मौत, ये मतलब तो ये भी एक याद करने की इन्होंने सूरत बनाई। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उस हदीस पाक के तहत इन्होंने लिखा, इस वाक़े में इसका कोई तस्करा मैंने नहीं पढ़ा। ताहम ये कि हम भी अगर ये चाहें तो अपनी ज़ाती दीवारों, किराए की जगह का रंग ख़राब नहीं कर सकते, या अपनी कोई ज़ाती चीज़ पर, डायरी पर कहीं सी जगह के नज़र पड़ जाए अल मौत लिख लिया, तो अन सब मौत याद करने की सूरत तो बनेगी। जो रोज़ाना 20 मरतबा मौत को याद करे तो उसको भी शहीद का रुतबा मिलता है। ये इस तरह के जो फ़ज़ाइल होते हैं ना, उसमें शहीद मजासी बोलते हैं इसको। एक तो शहीद फ़िक़ही होता है कि जो आलात हर्ब के ज़रिए मसलन दुश्मन के मुकाबले पर वो अपनी जान कुर्बान करता है, और दूसरे और कई ऐसे हैं कि जिसमें शहादतें मिलती हैं। यहाँ तक कि किसी कोई बीमार है और उसने उस बीमारी में 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ ली, तो अगर सेहत मिल गई तो बख्शा गया, फौत हुआ तो शहीद हुआ। और इस तरह के और भी हैं जिसमें शहादत, ये शहीद मजाजी होते हैं। गुस्ल, कफन, जनाजे की नमाज वगैरह सब इसको होगा, सवाब मिलेगा इसको शहीद का। मेरा नाम माजिद बशीर अत्तारी है, मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना मेलसी से अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरगीब पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 से ज़्यादा इस्लाम भाइयों को आज सलाम कर लिया है, और ये नीयत है कि इंशाअल्लाहुल करीम के आइंदा भी यही तरगीब लेते हुए 10 इस्लाम भाई को रोज़ाना और इससे भी ज़्यादा सलाम किया करूँगा। मेरे लिए और मेरे माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुमा बिग़ैरि हिसाब। माशाअल्लाह। अच्छा देखो 10 पर डन नहीं है, बाज़ सूरतों में तो सलाम करना सुन्नत होता है, तो 100 मरतबा भी ऐसे मौक़े मिले तो करना है, 90 माइनस नहीं कर रहे। अब चूँकि लोग सलाम में बहुत पीछे हट गए, इसलिए मैंने तरगीबन तो ये वजाहतें भी की थी मैंने, तो 10 ही पर डन नहीं है ज़हन बना लिया, और कम अज़ कम 10, और वो समझो ऐसे कि जिसमें ज़रूरी अगर नहीं भी है यानी वो सुन्नत नहीं भी है, लेकिन ये कि मना भी नहीं है कि मुस्तहब का दर्जा है, तो वैसे मुतलकन सलाम करना है तो सुन्नत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी सलाम फरमाते थे, पहल करते थे, सलाम करते रहना है। माशाअल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत दे।
اور یہ ایک دن کے لیے نہیں ہے, یہ بس عادت دلوانے کے لیے میں نے یہ عرض کیا ہے, دعا بھی دی ہے. تو عادت جب پڑ جائے گی تو پھر 10-20 کا کوئی ضرورت نہیں رہے گی. بابر علی اتاری فیضان مدینہ اٹلانٹا USA سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل ابھی اسلامی بھائی یہاں پر فیضان مدینہ اٹلانٹا میں 12 دینی کام کورس کے حوالے سے جمع ہیں. ایک اچھی تعداد الحمدللہ یہاں پر جمع ہے 3 دن کے لیے 12 دینی کام کورس کرنے کے لیے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی کچھ دیر قبل ارشاد فرمایا کہ ماشاء اللہ الکریم جب سے لے کے آپ کا نکاح ہوا تب سے لے کے اب تک آپ کے بچوں کی امی سے کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا, اور انہوں نے بھی کبھی دینی کام کرنے کے حوالے سے کوئی بدمزگی یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا ان کی طرف سے. تو آپ ہماری بھی رہنمائی فرمائیں کہ الحمدللہ جب یہاں پر ہم 12 دینی کام کورس کرنے کے لیے جمع ہیں تو ہم کس طرح اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ ہم دینی کام بھی کر سکیں اور ہمارے گھر میں بھی ماحول خوشگوار ہو, سنتوں کا ماحول ہو, دینی ماحول ہو. جزاک اللہ خیر. ہم سب اسلامی بھائیوں کے لیے جو اٹلانٹا فیضان مدینہ میں 12 دینی کام کورس کرنے کے لیے جمع ہیں ان سب کے لیے دعا فرما دیں بے حساب مغفرت کی. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. دیکھو کبھی انسان اختلاف رائے ہو جائے, کسی بات میں مطلب سمجھانا پڑ جائے, اور وہ ایک الگ صورت. لیکن میرے مراد یہ کبھی ایسی جو بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور روٹ بند ہو جاتی ہے, اور مطلب یہ کہ جو مسائل ہوتے ہیں مراد یہ ہے کوئی ایسا باقاعدہ جس کو لڑائی ٹھن جائے نا, جس کو اس طرح کا نہیں ہوا جھگڑا الحمدللہ, جس کو ہم جھگڑا کہہ سکتے ہوں کہ لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, میاں بیوی میں ناراضی ٹھن گئی, الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا. اور رہا یہ کہ اصل اس میں ہوتا ہے تالی دعا سے بچتی ہے. جیسے میں نے کہا نا میرے کان بھرنے آئے تھے تو مجھے بھی مطلب کہ غصے والا مانا جاتا تھا. اب میں کتنے غصے والا ہوں یہ دنیا دیکھ رہی ہے, یہ غصے والا ہے. ابھی یار کرنے کے کام کرو نا یار. میں غصے والا ہوتا اور مارا ماری والا ہوتا تو آپ لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے یار, کوئی اور ٹیم بنا کر پڈے کرتا ہوتا. کہ بعضوں میں ایک لیڈری کے گڑس ہوتے ہیں سمجھا. اب اس کی جیسی نیچر اور چوری چکاری کی عادت ہوگی چوروں کی ٹیم بنائے گا, ڈکیتی کرنی ہوگی تو ڈکیتیوں کی ٹیم بنائے گا. اسی پر قیاس کر لیں. تو جس کو نیکی کی دعوت کی دھن ہوگی اللہ کی رحمت سے وہ نیکی کی دعوت والوں کی ٹیم بنائے گا تو وہ جھگڑے کرتا ہوگا تو کہاں سے نیکی کی دعوت دے سکے گا. بات بات غصہ, چڑچڑاپن, جھاڑ دینا, بے عزتی کر دینا, تو ایسا آدمی دین کا کام کہاں کر سکے گا, بہت دشوار ہے. تو خیر میں کیا اپنے وہ بات کروں, آپ دیکھ ہی رہے کہ میں کتنا غصے والا ہوں. میرے ذمہ داران اسلامی بھائی جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں سمجھے, تو الحمدللہ میرے ساتھ بچہ ہوتا کئی بار اس نے کہا میرے پر غصہ کرو, مجھے ذرا جھاڑو, مجھے مارو, کئی بار کہہ چکا ہے. وہ مطلب وہ تفریحاً تو عادت غصہ آتا, ایسا نہیں غصہ نہیں آتا, ذرا غصہ نہ آئے اس کی بھی کوئی یعنی کہ اس کی بھی کچھ تعریف ہے اس کی, جب بھی میں بولتا نہیں آپ کو سمجھے. تو یعنی کہ ایک غصہ ہوتا ہے کہ کوئی مخصوص موقع پر یہاں حاجت ہوتی ہے, کہیں کوئی دین کا مسئلہ ہوتا ہے, ضرورت ہوتی ہے, ایک تو یہ یا آ جاتا ہے. غصہ آ جانا برا نہیں ہے, غصہ نافذ کر دینا وہ بھی گناہ کے ذریعے وہ خطرناک ہے. تو غصہ تو مجھے بھی آتا ہے, لیکن میرے مار دھاڑ کے اور اڑاوڑی کے واقعات آپ نے نہیں سنے ہوں گے, اللہ کرے نہ سنے کبھی بھی, کیونکہ ہے نہیں اس طرح کی عادت نہیں ہے لڑا لڑی مارا ماری کرنے کی الحمدللہ. تو خیر تو غصہ آنا یہ مفید بھی ہوتا ہے. ایک فائدہ تو اس کا یہ کہ غصہ آیا اور اس نے اللہ کے لیے اس کو پی لیا کہنا یہ کہ اس کو ضبط کر گیا, برداشت کر گیا, اس کو ثواب ملے گا, ٹھیک ہے نا. اور جس نے غصہ آ گیا اور جس کا غصہ کسی گناہ کے بغیر ٹھنڈا نہیں ہوتا تو وہ گناہ کرے گا. نہ غصہ آ گیا جب تک گالی نہیں نکالے گا نا اس وقت اس کا غصہ جائے گا نہیں. غصہ آ گیا جب تک اس کو ٹھوکے گا نہیں اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا, نہ حق مطلب. تو جو اس طرح گناہ کے بعد جس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے یہ بڑا بد نصیب آدمی ہے. ایسوں کے لیے جہنم کا فکس گیٹ ہے,
मखसूस दरवाज़ा है जिससे गुजर कर ये जहन्नम में जाएगा। तो गुस्सा आना और चीज़ें, जैसे अवाम बोल देते गुस्सा हराम है, ये गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। गुस्सा तो सबको आता है, तो गुस्सा हराम उस सूरत में होगा जब उसके जरिए उसने हराम काम किया, तब भी वो गुस्सा हराम का लफ्ज़ वहाँ भी नहीं बोला जाएगा। इसने जो काम किया वो अगर हराम है तो उसको हराम बोला जाएगा। नाहक के बाद वो गुस्से में बंदा वो काम करेगा कि जो नाहक नहीं होगा। इसकी मिसालें हैं, मुझे देना मुनासिब नहीं है। तो इस तरह फतवे के ज़रूरत भी बाज़ औक़ात इंसान को पड़ती है, लेकिन हमारे बात तो पहले सुनते थे, अब तो खैर समझा कर अब ये वाक़यात नहीं आ रहे। जैसे कोई निगरान है, जिम्मेदार है, अपने मातहत को झाड़ना डांटना, दीन के लिए डांट रहा हूँ, अरे तू कौन होता है डांटने वाला यार? तो ज़रूरत काजी करेगा ये काम, तो यार ज़रूरत औलाद को माँ बाप करेंगे, तुझे सिर्फ नरमी कर दी है, तो हकीम थोड़ी है, ये तेरी रियाया है। ऐसी रियाया जो झाड़ता फिर तो सब भाग जाएंगे। तो ये समझा कर कि भाई हमारा काम नेकी की दावत का है, हमने सिर्फ नरमी करनी है, हम मातहत पर सख्ती करेंगे भाग जाएगा, शैतान उसको ले जाएगा, हमें इजाज़त भी नहीं है। अम्र बिल मारूफ में सख्ती की सूरतें हैं, लेकिन वही मैंने कहा काजी के लिए, हकीम इस्लाम के लिए, तो वो ऐसा कि हम लोग वो है ही नहीं, मतलब तस्वुर भी नहीं इसका, हम सिर्फ नरमी करेंगे। तो निगरान मातहत को नहीं झाड़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उमूमन जो ये जो जज्बात हमारे मजरू होते हैं, गुस्सा आ जाता है या इस तरह की कैफियत बनती है ना, इसके पीछे शायद कोई एक वजह ये भी होती है कि मनवाने का जज्बा होता है। यानी अगर आपका जहन बना हुआ कि मैंने मनवाना नहीं है, पहुंचाना है, अपनी बात पहुंचा दी, नहीं माना ठीक है, लेकिन जब मनवाने पर हम उतर आते हैं ना, तो फिर वहाँ पर बाज़ औक़ात मामला डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो मामला तो घर के ताल्लुक से चला था कि घर का माहौल में आपस में लड़ा झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब मैंने कहा यार बस दो हाथ से ताली बजती है, अगर एक फर्द है भी थोड़ा कमज़ोर, गुस्सा आ जाता है या टेढ़ा चलता है, तो दूसरा जो है ना वो अगर सीधा रहेगा ना, तरकीब बनती रहेगी। बाज़ होता है, बाज़ देखो 5 उंगलियां सही नहीं है, फिर औरत और मर्द की अक्लों में फ़र्क होता है। तो इस तरह मतलब है कि वो निभाने वाली बात करनी होती है। बार बार झाड़ते रहेंगे, वो अगली गलती करेगी, वाकई 100% उसकी गलती होती भी है, मगर आप ये गौर करें कि मेरे को इसको रखना है कि भगाना है। अगर रखना है तो इसको गलती समेत रखकर इससे नफ़ा उठेगा, बच्चों की परवरिश होगी, घर चलेगा। अब अगर हम इसको मतलब बोले कि ये मेरे जैसी हो जाए, ये नहीं हो सकेगा। तो यूं मतलब थोड़ा जहन अच्छा हो ना मर्द का, तो घर नहीं टूटते यार। घर जो टूटम टाट जो चल रही है ना, तो ये वो गलती अगर कर भी रही है तो ये भी खर दिमागी में पीछे नहीं होता। अच्छा बाज़ वक़्त ये शरीफा होती है, वाकई औरत बाज़ वक़्त बहुत शरीफन होती है, ये गलती नहीं होती। ये शोहर जो है ना, ये फड्डे करता रहता होता है, ये गर्म क्यों नहीं किया, इस्त्री में इतनी देर क्यों लगा दी, देखिए दाग पड़ गया, आज नमक ज़्यादा तूने डाल दिया है, आज चाय के वजह मीठी शरबत बना दी है मुझे, वगैरह वगैरह। ये कुड़ करता रहेगा तो घर चलना बहुत मुश्किल चलेगा, तो वो बेजारी के साथ और नफरतों के साथ चलेगा। तो दोनों शख्स, दोनों फरीक है ना, ये समझो कि इनके घर चलने का जो नुस्खा है ना, मेन दवा, ये प्यार, ये टॉनिक अगर दोनों के पास है प्यार का, घर कहीं नहीं जाता, घर चलेगा, औलाद दुआएं देगी आपको। वरना लड़ते रहोगे ना, औलाद भी कभी माँ के साथ होगी, कभी बाप के साथ होगी। फिर ये कि ज़्यादातर माँ के साथ होती है कि आप तो नौकरी करने या नोटे समेटने चले जाते हैं, औलाद को टाइम कितना देते हैं, आते हैं तो फिर आजकल तो सोशल मीडिया को भी टाइम देना पड़ रहा होता है। तो बच्चे को माँ रात दिन नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, जगाती है, और मतलब उसको माँ संभाल रही होती है। तो ये औलाद जनरली जो भी मसाइल घर में होते हैं, माँ का साथ देती है कि इसको माँ का प्यार मिला है, बाप का प्यार नहीं मिला। बाप आता है, थका हुआ बच्चा आकर लिपटेगा, है हट जा, देखता नहीं मैं थका हुआ हूँ, मुझे थोड़ा सांस लेने दे। तो फिर कोई मसला हो गया या माँ ने शिकायत कर दी, माएँ भी बच्चों को मरवा देती है बाजूकात। आज बेटे ने प्याला तोड़ दिया था, अब वो बाप ने हड़ाउड़ी कर दी। दूसरे दिन आया तो आपने इसको सर पे चढ़ा रखा है, आप इसको यूं नहीं बोलते, आज इसने ये कर दिया है करके टा करके रख दिया।
तो फिर बच्चे का जहन क्या बनेगा कि बाप मारधाड़, बाप जब भी आता है मुझे बाप का प्यार नहीं मिला। ये आपको ऐसे बड़े जवान भी मिले होंगे, मुझे भी मिले, हमको माँ बाप का प्यार नहीं, हमको कभी बोलेंगे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, कभी बोलेंगे बाप का प्यार नहीं मिला। तो अब जो इनमें इनके साथ ज्यादती करते हैं इस तरह या बेरारबी या गलत सलूक करते हैं, इसका ये बच्चा असर लेता है और ये आगे चल के ये माँ बाप का मुखालिफ, बागी, फिर लड़के अलग हो जाना मियाँ बीवी का, फिर ये कि कभी तो अब तो वो ओल्ड हाउस, तो पता नहीं क्या क्या मसाइल। मैंने ऐसे भी माँ बाप देखे हैं कि जो घर से निकाले गए, मेरे पास आए कि मेरे बेटे ने मुझे घर से ही निकाल दिया। बेटे को ऐसा करना नहीं चाहिए, माँ बाप ने लाख जुल्म किया था, गलती की थी, आप काय को गलती कर रहे हैं, आप निभाए, लेकिन शैतान नफ्स, तो ये होते हैं मसाइल। तो शुरू से अगर औलाद पर ऐसा अंदाज इख्तियार करे ना कि यानी मामला जो बैलेंस रहे, हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, मियाँ बीवी का बैलेंस, बच्चे और माँ बाप का बैलेंस होगा तो घर अच्छा चलेगा। जिनके चल रहे चल भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि हर घर में कोई लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है और मारा मारी है, सब कुछ नहीं है। लेकिन जिनके घरों में मारा मारी होती है उनकी शोहरत ज्यादा होती है, तो अपने को लगता है कि हर घर में झगड़ा है, और जिनका कुछ नहीं होता उनको पता नहीं चलता कि इनका घर अमन का गहवारा बना हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपने पिछले मदनी मुज़ाकरे में इस्लाम में पहल करने वालों के लिए दुआएं शाद फरमाई। आपने इस्लामी बहनों के लिए भी दुआएं शाद फरमाई। फरमाया जो मेरी मदनी बेटी ऐसा करे ए अल्लाह पाक, इसके हक में भी ये दुआ कबूल फरमा। जो इस्लामी बहन आपकी मदनी बेटी तो नहीं मगर इस पर अमल करके आपकी दुआओं में से हिस्सा लेना चाहती हैं, वो क्या करे? मदनी बेटी की कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। जो भी इस्लामी बहनें कहो, हम इस्लामी भाइयों कहते हैं, इसमें एक से एक बेनमाजी भी तो सुनने वाले होते हैं जो दावत इस्लामी पहली बार आए हुए हैं, को पता ही नहीं होता दावत इस्लामी क्या है। तो इसी तरह तो मैं मदनी बेटे मदनी बेटियां बोलता हूँ मेरी उम्र के हिसाब से, कि मेरा बोलता हूँ तो एक दिलजोई का सामान भी होता होगा, आप बोलेंगे तो जमेगा नहीं। तो वैसे इसके लिए फिक्सिंग नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि मदनिया समझते हो कि मदनिया मदनी बेटी या अत्तारिया मदनी बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की मुरीद है नहीं है, जो भी है मुसलमान है। तो मैं अपनी उम्र के हिसाब से, कि ये आमतौर पर मुझसे सुनने वाले छोटे होते हैं, बुढ़ों के लिए भी निकल जाता है बेटा मेरे मुंह से, तो ये भी समझते होते हैं कि यार ये भी हमारी तरह, हम भी तो कुछ बोल ही देते हैं ना। अभी तक बुरा तो किसी ने माना मेरे सामने आया नहीं है कि हमको बेटा काय को बोला, बल्कि मेरा उस नजर है जो मोहब्बत करते खुश ही होते होंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुआएं हर मुसलमान के लिए जो मैंने की हैं, मैं तरगीब दिलाने के लिए कि बस माशरे में सलाम आम हो जाए, बहुत कम हो गया। ये बाज़ जवानों की भी आदत होती है, वो भी अपने हम उम्र और बाज़ों का तो बड़ों को भी बेटा बेटा करके बातें कर रहे होते हैं। ये हम जैसे तो बूढ़े तो करते हैं, ये पीर खाने के जो होते हैं ना, वही बेटा थोड़ा मान मिला होता है ना, बाजुआत ये करते हैं। आम मुबल्लिग नहीं बोलेगा बेटा, डरेगा। आपसे कभी याद नहीं पड़ता कि किसी को आपने बेटा कहो, लेकिन आप कहो तो चल जाए, निकल जाता होगा कभी, कोई हर्ज नहीं। मैंने अपना कहा कि मुझे सुनना याद नहीं है आपके मुंह से। बाज़ लोग जो है ना वो गलत अंदाज में भी इसको इस्तेमाल करते हुए किसी को बोलते हैं हाँ बेटा वो, हाँ वो तो खैर हो, फिर वही सूरत अलग है। बेटा क्या समझता है? सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली।
آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے ایک آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے. مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے. آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں. مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے. آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے اتار. بی بی فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی تھی. سیدہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک بدن سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا.